and pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel, Asit Government Rule Guru. Today, I will discuss fundamental rules, rule 26 to 40. Already, I have uploaded 3 parts. Actually, it is the 4th part. It is very important one, rule 26 to 40. In this part, I will discuss counting of service for increment, premature increment, reduction as a measure of penalty to a lower stage, officiating pay, pay during officiating a post, personal pay, pay of temporary post, pay on temporary post filled by government servant. In this part also I will discuss 10 MCQs, very important MCQs. Nowadays those type of questions actually are coming in the examination. In the same pattern already I have made 10 MCQs. So definitely this session would be interesting one. My friends, please subscribe my channel, share my channel, like my channel, so that you can get notification for my upcoming videos. So my channel name Asit Government Rule Guru, and let's compete. So my friends, please you listen the video up to the end. Definitely collect good information, but you remember FR rules 26 to 40, and I will discuss 10 MCQs. You see my contact WhatsApp number, it is 8327782034, and if you want to join my Telegram channel, link is there, t.me/BAPI2034. So if you join my Telegram channel, then also you can get my up-to-date video. So now I am going to start 10 MCQs with fundamental rules 26 to 40. You see the question number 1. Qualifying service of dash on account of extraordinary leave, UL, without medical certificate between 1st July of previous year till 30th June of the year shall have the effect of postponing the increment to 1st July of the next year. It is a very important one. One thing you remember related to the extraordinary leave without medical certificate. Extraordinary leave without MC, without medical certificate. So if the qualifying service here 1st July is the increment date. 1st July is the increment date. So 1st July to 30th June. In my example, in my question, 1st July to 30th June, it is 1 year. So you know that if the qualifying service during this period, it means during this 1 year, if the qualifying service is less than 6 months, then next year 1st July the increment would be postponed. आपको इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा. क्वालिफाइंग ये जो EOL विदाउट MC विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट, ये क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि ये ड्यूटी पीरियड नहीं है. आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ले रहे हो, मेडिकल सर्टिफिकेट दे दो, वो ड्यूटी पीरियड में काउंट होगा, और ड्यूटी पीरियड में काउंट हो गया मीन्स क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट हो गया, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. मगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ले लिया विदाउट MC, वो ड्यूटी पीरियड में काउंट नहीं होगा, तो क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट नहीं होगा. ये जो 1 ईयर में यदि आपका एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव विदाउट MC मोर देन 6 मंथ्स हो जाता है, तो मोर देन 6 मंथ्स होगा तो ऑटोमेटिकली आपका क्वालिफाइंग सर्विस इट मींस लेस देन 6 मंथ्स हो जाएगा. आपका क्वालिफाइंग सर्विस लेस देन 6 मंथ्स हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपको इंक्रीमेंट नेक्स्ट ईयर नहीं मिलेगा 1st जुलाई में. तो यदि आप 15, 20 की 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट में रह जाते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका इंक्रीमेंट अफेक्ट नहीं होगा. कब आपका इंक्रीमेंट अफेक्ट होगा? यदि आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट अब मोर देन 6 मंथ्स ले लिए. इफ यू हैव टेकन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव विदाउट MC फॉर मोर देन 6 मंथ, देन डेफिनेटली इट विल पोस्टपोन योर नेक्स्ट इंक्रीमेंट. तो इसमें क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ लेस देन 6 मंथ्स ड्यूरिंग ए ईयर,
क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ लेस देन 6 months ड्यूरिंग ए ईयर, ठीक है, तो इस केस में आपका नेक्स्ट इंक्रीमेंट पोस्टपोन हो जाएगा, आपको नेक्स्ट इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। कभी बहुत क्वेश्चंस आता है कि मेरा ईओएल विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट 15 डेज है कि 20 डेज है कि 1 month है, 2 months है, 3 months है, 4 months है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इंक्रीमेंट अफेक्ट नहीं होगा। मगर जब आपका ईओएल विदाउट एमसी मोर देन 6 months हो जाएगा, ठीक है, तो मोर देन 6 months हो गया मीन्स आपका क्वालिफाइंग सर्विस लेस देन 6 months हो जाएगा, क्योंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव विदाउट एमसी वो क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड नहीं होगा। विदाउट एमसी, विथ एमसी इंक्लूड होगा क्वालिफाइंग सर्विस में, मगर विदाउट एमसी ड्यूटी पीरियड में काउंट नहीं होगा, कि क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड नहीं होगा। तो यदि आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट मोर देन 6 months ले जाते हो ड्यूरिंग ए ईयर, तब आपका नेक्स्ट इंक्रीमेंट पोस्टपोन हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, 2 स्टेटमेंट्स गिवन, राइट। यहां पर जो क्वेश्चन है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव ग्रांटेड फॉर द फॉलोइंग पर्पजेस ऑटोमेटिकली काउंट्स एज क्वालिफाइंग सर्विस फॉर पेंशन एंड फॉर इंक्रीमेंट्स विदाउट एनी फर्दर सैंक्शंस। इसमें क्या है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव आप ले लिया, मगर वो ऑटोमेटिकली क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट होगा, तो इसमें ना आपका पेंशन अफेक्ट होगा ना आपका इंक्रीमेंट्स अफेक्ट होगा। तो क्या ऐसा कंडीशन है जिसके लिए आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव लेना है आपको? फॉर व्हिच एक्टिविटीज you have taken extraordinary leave, right, so that automatically it will be included in qualifying service and it cannot affect your pension and increment. So 2 statements given, you see, EOL granted due to inability of a government servant to join duty on account of civil commotion। कभी कहां पर सिविल कमोशन हो गया, आप ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर पाए, ठीक है, सिविल कमोशन हो गया, आप वहां पर ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर पाए, तो इसमें तो विदाउट एमसी हो गया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव विदाउट एमसी। सपोज आपके पास कोई भी लीव ड्यू नहीं है, ठीक है, कोई भी लीव ड्यू नहीं है, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट, सिविल कमोशन हो गया, आप ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो, तो इसके ऑटोमेटिकली वो क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट वन, यूएल ग्रांटेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर प्रोसिक्यूटिंग हायर टेक्निकल एंड साइंटिफिक स्टडीज। आप याद रखिए, उसमें भी विदाउट एमसी, ये दोनों केस में विदाउट एमसी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव विदाउट एमसी। एक है सिविल कमोशन हो गया, ठीक है, नॉर्मल लाइफ इज पैरालाइज्ड एंड यू आर अनएबल टू ज्वाइन द ड्यूटी। नेक्स्ट वन, आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव विदाउट एमसी किस लिए लिया ना, प्रोसिक्यूटिंग हायर टेक्निकल एंड साइंटिफिक स्टडीज, याद रखिए। तो ये दोनों केस में आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव ले जाओ विदाउट एमसी, मगर ऑटोमेटिकली क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड होगा और इसमें आपका इंक्रीमेंट और पेंशन अफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो दोनों जो है करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, दोनों केस में आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव ले सकते हो विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट और वो ऑटोमेटिकली क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड होगा और ऑल्सो इट कैन नॉट अफेक्ट योर पेंशन एंड इंक्रीमेंट। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, सब्जेक्ट टू एनी जनरल और स्पेशल ऑर्डर्स दैट मे बी मेड बाय द प्रेसिडेंट इन दिस बिहाफ, एन अथॉरिटी may grant a premature increment to a government servant on a time scale of pay। यहां पर दे प्रीमैच्योर इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट 1 ईयर में लगता है। अभी जो 7th पे था आइदर 1 जनवरी और 1 जुलाई, राइट, 1 जनवरी और 1 जुलाई, और इसमें आपका क्वालिफाइंग सर्विस 6 months होना चाहिए, है कि नहीं। तो यहां पर प्री मैच्योर आपका इंक्रीमेंट डेट नहीं आया है, मगर प्री मैच्योर इंक्रीमेंट आपको मिलेगा। तो आप देख लीजिए फंडामेंटल रूल, ठीक है, 27, ये प्री मैच्योर इंक्रीमेंट के ऊपर है। तो यहां पर क्लियरली मेंशन है, यहां पर ऑप्शंस 4 ऑप्शंस है, देखिए क्या है। इफ इट हैज द पावर टू क्रिएट ए पोस्ट इन द सेम कैडर ऑन द सेम स्केल ऑफ पे,
इफ इट हैज पावर टू इनिशिएट बोथ माइनर एंड, यहां पर थोड़ा स्पेलिंग गड़बड़ है, एंड मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स, इफ इट हैज पावर टू क्रिएट सुपर न्यूमररी पोस्ट, इफ इट हैज पावर टू ग्रांट लीन ऑन द पोस्ट। ये जो 4 ऑप्शन है, तो यहां पर वो क्लियरली दे दिया, एन अथॉरिटी मे ग्रांट ए प्रीमैच्योर इंक्रीमेंट टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन ए टाइम स्केल ऑफ पे। तो इसमें अथॉरिटी का क्या पावर होना चाहिए? ओके, व्हिच टाइप ऑफ पावर मस्ट possess by an authority so that he or she can grant premature increment to a government servant। premature means क्या है? जैसे जुलाई 1 में आपका इंक्रीमेंट पीरियड है, उसके पहले आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, ठीक है? तो इस रिलेटेड में अथॉरिटी के पास क्या पावर होना चाहिए? व्हिच टाइप ऑफ पावर मस्ट possess by the authority। ये जो 4 ऑप्शंस दिया गया है, इसमें आप याद रखिए, जिस अथॉरिटी के पास पावर है वो एक पोस्ट क्रिएट कर सकता है। द अथॉरिटी हैज द पावर टू क्रिएट ए पोस्ट इन द सेम कैडर, राइट, ऑन द सेम स्केल ऑफ पे। सेम कैडर में अथॉरिटी का पावर है, वो एक पोस्ट क्रिएट कर सकता है। वही अथॉरिटी प्रीमैच्योर इंक्रीमेंट ग्रांट कर सकता है, ठीक है? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इफ द अथॉरिटी हैज पावर टू क्रिएट ए पोस्ट इन द सेम कैडर ऑन द सेम स्केल ऑफ पे। क्लियर? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 4 को चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को हमको डिटेक्ट करना है। जो स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, मैं अंडरलाइन कर दिया। इसमें 3 स्टेटमेंट्स गिवन क्वेश्चन नंबर 4 में। जस्ट वी डिटेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अच्छा, इफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज रिड्यूस्ड, if a government servant is reduced as a measure of penalty to a lower service grade or post or to a lower scale, the authority ordering the reduction shall specify measure penalty, ठीक है? मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग में गवर्नमेंट सर्वेंट को जो पेनल्टी लगता है उसमें वो स्विच ओवर करना पड़ता है उसको लोअर पोस्ट में, ठीक है? कि अभी जो उसका सपोज ग्रेड पे है वो कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली, वो जब लोअर पोस्ट को जाएगा उसका ऑटोमेटिकली वो लोअर लेवल को, पे लेवल को चला जाएगा। अभी सपोज पे लेवल 8 में है, सपोज उसको पे लेवल 7 को ले लिया गया, कि सपोज कोई लोअर पोस्ट में चला गया पेनल्टी के हिसाब से, ठीक है? तो वही दिया है, आज ए मेजर पेनल्टी टू ए लोअर सर्विस में। जैसे लोअर सर्विस मीन्स जैसे आप सपोज टीचिंग लाइन में आप पहले ज्वाइन किया था, सपोज टीजीटी में आपका प्रमोशन हुआ था, पीजीटी में आप अभी पीजीटी पोस्ट में हो, आपके ऊपर पेनल्टी लगा, तो मेजर पेनल्टी में आप टीजीटी, ओके, लोअर पोस्ट को आ सकते हो पेनल्टी में, ठीक है? मगर कोई डायरेक्ट आप ज्वाइन किया पीजीटी में, डायरेक्ट ज्वाइन किया पीजीटी में, तो मेजर पेनल्टी लगा, तो आपको टीजीटी में शिफ्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली आप पीजीटी में ज्वाइन किया था। मगर मैं ये जो था, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे आप ट्रेन ग्रेजुएट टीचर था, प्रमोशन में अभी पीजीटी में चले गए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, मगर अभी आपके ऊपर मेजर पेनल्टी लगा, तो आपको टीजीटी पोस्ट को शिफ्ट होना पड़ा पेनल्टी के हिसाब से, हो सकता है। तो वही पे लेवल कम, सपोज आप पे लेवल 9 में हो, अभी पे लेवल 7 को आपको पेनल्टी पीरियड में, पेनल्टी जो करेंसी पीरियड होता है, पे लेवल 7 पेनल्टी के हिसाब से आपको शिफ्ट कर दिया गया, तो ये है। तो इसमें जो ऑप्शंस दिया है, द पीरियड फॉर व्हिच रिडक्शन शैल बी इफेक्टिव, whether on restoration the period of reduction shall operate to postpone future increments, and if so to what extent. Third statement, the government servant shall regain his original seniority in the higher service grade or post on his restoration to the service grade or post from which he was reduced। तो इसमें इनकरेक्ट वो बहुत क्लियर है। जब इस तरीके का पेनल्टी लगता है, जैसे आपको लोअर पोस्ट को शिफ्ट कर दिया गया, आपका पे लेवल को कम कर दिया गया, तो इस केस में क्या है, ऑर्डर में क्लियरली मेंशन होता है कि ये जो रिडक्शन हुआ कब से इफेक्टिव होगा, कौन सा डेट से इफेक्टिव होगा, फ्रॉम व्हिच डेट एक्चुअली दिस टाइप ऑफ रिडक्शन वुड बी इफेक्टिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर में मेंशन होगा कि फलाना, जैसे आज 25 नवंबर है, कि 25 नवंबर 2024 से उसका रिडक्शन जो है इफेक्ट हुआ, ठीक है? और नेक्स्ट वन, यदि आपको पेनल्टी पीरियड खत्म हो गया, ठीक है, आपको रेस्टोर बैक कर दिया जाएगा, आपका जो ओरिजिनल पोस्ट था उसमें आपको
रेस्टोर बैक कर दिया जाएगा। उसमें क्लियरली मेंशन होगा यदि आपको रेस्टोरेशन किया जाएगा, क्या उसमें आपका फ्यूचर इंक्रीमेंट पोस्टपोन होगा, ऑर्डर में मेंशन होगा। ऑर्डर में पर्टिकुलर डेट हो गया कि इसका रिडक्शन इसी डेट से इफेक्टिव होगा। सेकेंड, उसमें और एक मेंशन होगा यदि पेनाल्टी पीरियड खत्म होने के बाद आप रेस्टोर कर जाते हो आपका ओरिजिनल पोस्ट को, वहां पर आपको क्या है ना, आपका फ्यूचर इंक्रीमेंट पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा। यदि फ्यूचर इंक्रीमेंट पोस्टपोन होगा तो जो आपका ओरिजिनल पोस्ट में जो पे लेवल था, जो आपका पे लेवल का सेल था, वही रहेगा, क्योंकि फ्यूचर इंक्रीमेंट को पोस्टपोन कर दिया गया। उस तरीके का एग्जांपल मैं आगे में डिस्कस करूंगा, मगर उसमें क्लियरली मेंशन होगा ऑर्डर में कि इसी डेट से इफेक्टिव हुआ रिडक्शन, और रेस्टोरेशन जब होगा तो फ्यूचर इंक्रीमेंट पोस्टपोन होगा कि नहीं, ये भी ठीक है। नेक्स्ट वन, यदि आप रेस्टोरेशन कर जाते हो आपका पेनल्टी पीरियड खत्म होने के बाद, आपका जो ओरिजिनल सीनियरिटी है इन द हायर सर्विस ग्रेड और पोस्ट ऑन हिज रेस्टोरेशन टू द सर्विस ग्रेड और पोस्ट फ्रॉम व्हिच ही वाज रिड्यूस्ड, तो ऑटोमेटिकली आप रीगेन कर लेंगे, क्योंकि करेंसी जो पेनल्टी करेंसी पीरियड है आपको लोअर पोस्ट को शिफ्ट कर दिया गया, कि लोअर पे लेवल को शिफ्ट कर दिया गया। मगर जब वो पेनल्टी पीरियड खत्म हो जाएगा आप फिर आपका ओरिजिनल पोस्ट रीगेन करेंगे, आप जो सीनियरिटी वही रहेगा, आप जो पोस्ट में थे वो आ जाएगा, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, मगर ये ऑर्डर में तीनों चीज मेंशन होना चाहिए कि बेसिकली इफ द पेनल्टी इज इम्पोज्ड एंड योर पोस्ट इज रिड्यूस्ड, देन फ्रॉम व्हिच डेट एक्चुअली इट वुड बी इफेक्टिव, कौन सा डेट से इफेक्टिव होगा। ऑर्डर में मेंशन होगा कि यदि आपको पेनल्टी मिला और लोअर पोस्ट की लो पे लेवल को आपको शिफ्ट कर दिया गया, तो यदि आपका पेनल्टी पीरियड खत्म, उसमें क्या आपका फ्यूचर इंक्रीमेंट को पोस्टपोन कर दिया जाएगा, कि फ्यूचर इंक्रीमेंट मिलेगा, कि फ्यूचर इंक्रीमेंट को पोस्टपोन कर दिया जाएगा, ये मेंशन होगा ऑर्डर में। थर्ड चीज है कि जब आपका पेनल्टी पीरियड खत्म हो जाएगा आप रीगेन कर जाएंगे, आपका ओरिजिनल पोस्ट आपको मिलेगा, आपका सीनियरिटी रहेगा, ठीक है। तो आप ऑलरेडी फिर रिस्टोर बैक कर जाओगे आपका ओरिजिनल पोस्ट को, तो ये भी ऑर्डर में मेंशन होगा। तो ये तीनों चीज करेक्ट है, ठीक है। तो यहां पर जो है इनकरेक्ट पूछा है, तो ऑप्शन डी नॉन होगा, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। जब पेनाल्टी में लोअर पोस्ट को शिफ्ट कर दिया जाता है तब ऑर्डर में ये तीनों मेंशन होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, when a temporary post is created which will probably be filled when a temporary post is created which will probably be filled by a person who is already a government servant, its space should be fixed by the central government with due regard to। दो स्टेटमेंट दिया है, हम चूज करेंगे क्या ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है, कि एक ठीक है, कि वो दोनों ठीक है, कि वो दोनों ठीक नहीं है, ये सब देखेंगे, ठीक है। आप देखिए एक टेम्पोररी पोस्ट क्रिएट किया गया, मगर टेम्पररी पोस्ट को कौन फिल किया, एक गवर्नमेंट सर्वेंट ने फिल किया। ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्वेंट का काम कर रहा है एक पोस्ट में, यदि टेम्पररी पोस्ट को क्रिएट किया गया, इसमें ऑब्जर्व गवर्नमेंट सर्वेंट को ऑब्जर्व किया गया, ठीक है। तो एक गवर्नमेंट सर्वेंट को जब ऑब्जर्व किया गया तो कंडीशंस क्या होगा, तो जब ये टेम्पररी पोस्ट में कोई गवर्नमेंट सर्वेंट को ऑब्जर्व किया गया तो उसका पे फिक्सेशन कैसे होगा, आप समझ रहे हो कि नहीं। तो ये क्वेश्चन दिया है, आप FR रूल 40 आगे में तो मैं डिस्कस करूंगा, FR 40 में क्लियरली मेंशन है कि यदि कोई टेम्पररी पोस्ट क्रिएट किया गया और उसमें कोई गवर्नमेंट सर्वेंट को ऑब्जर्व, गवर्नमेंट सर्वेंट ऑलरेडी एक पोस्ट में है, उसको ये टेम्पररी पोस्ट में ऑब्जर्व कर दिया गया, तो फर्स्ट वन उसका कैरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वर्क टू बी, तो फर्स्ट उसका कैरेक्टर को देखा जाएगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो टेम्पररी पोस्ट क्रिएट हुआ, एक गवर्नमेंट सर्वेंट एक पोस्ट में है और ये टेम्पररी पोस्ट में उसको ऑब्जर्व किया गया, क्यों किया गया, क्योंकि उसका कैरेक्टर अच्छा है और वो रिस्पॉन्सिबल है, उसका जो पास्ट सर्विस को देखा गया बहुत रिस्पॉन्सिबल है और ये टेम्पररी पोस्ट को बहुत सही से निभाएगा। ऑलरेडी इट इज डिटेक्टेड दैट his character is good one, and also if he is observed in temporary post he can handle the temporary post properly, ठीक है। ये फर्स्ट करेक्ट है, ये दो चीज को देखा जाएगा। नेक्स्ट, द एग्जिस्टिंग पे ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट ऑफ स्टार्टस सफिशिएंट, अच्छा वो तो एक पोस्ट में है, तो पोस्ट में है मीन्स उसका पे लेवल को देखा जाएगा कि उसका जो प्रीवियस सर्विस था, जो प्रीवियस परमानेंट सर्विस था, उसका पे स्टेटस क्या था, वो कौन सा पे लेवल में है,
यदि वो अभी ये टेम्पररी पोस्ट में आ रहा है, वो क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, क्या थोड़ा बर्डन आ जाएगा, ज्यादा बर्डन है इस वर्क में, कैरिंग मोर बर्डन, ठीक है, कैरिंग मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसके हिसाब से उसका पे फिक्स होगा, क्योंकि ऑलरेडी तो एक गवर्नमेंट पोस्ट में है ना, उसमें भी एक पे लेवल में है। यदि वो ये टेम्पररी पोस्ट में ऑब्जर्व हो रहा है, उसका कैरेक्टर अच्छा है और वो रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि पास सर्विस से पता चलता है कि बहुत रेस्पॉन्सिबल है एंड ही कैन मेंटेन ही कैन हैंडल द टेम्पररी पोस्ट प्रॉपरली, तो अब उसका जो पास्ट सर्विस था, परमानेंट सर्विस, उसका पे लेवल क्या था। यदि वो टेम्पररी पोस्ट में आ रहा है, क्या वो ज्यादा बर्डन लेगा, क्या ज्यादा कैरिंग मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी, कैरिंग मोर बर्डन, तो उसके हिसाब से उसका पे फिक्सेशन होगा। तो ये दोनों करेक्ट है, ये दोनों करेक्ट है। आप देख लीजिए फंडामेंटल रूल्स 40, तो ये दोनों करेक्ट है, बोथ 1 and 2, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 6 को चलेंगे। द सेंट्रल गवर्नमेंट में इशू जनरल और स्पेशल ऑर्डर्स allowing acting promotions to be made in the place of government servant who are treated as on duty under। अब देखिए एक दे दिया एक्टिंग प्रमोशन को मैं एनसर्कल कर दिया। एक्टिंग प्रमोशंस क्या है, यदि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट ट्रेनिंग में चला गया, ओके, गवर्नमेंट सर्वेंट ट्रेनिंग में चला गया, सपोज 3 months की 6 months के लिए ट्रेनिंग में चला गया, ट्रेनिंग जरूरत है, जो 3 months की 6 months के लिए जो ट्रेनिंग में गया, तो उसी का पोस्ट में एक टेम्पररी पीरियड के लिए एक एम्प्लॉय को प्रमोशन दे दिया जाएगा, क्योंकि वो तो अभी ट्रेनिंग में चला गया ना। तो यदि वो ट्रेनिंग में चला जाता है तो अब एक एक्टिंग प्रमोशन होगा, ओके, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट को टेम्पररी पीरियड के लिए प्रमोट कर दिया जाएगा उसके जगह में। बेसिकली द गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम कैन रिप्लेस हिम, क्योंकि वो अभी ट्रेनिंग में है। तो वो जब ट्रेनिंग में जा रहा है वो ड्यूटी पीरियड में काउंट होगा उसका ट्रेनिंग, क्योंकि मैं सपोज फॉर एग्जांपल 6 months के लिए ट्रेनिंग में चला गया, वो 6 months के लिए ट्रेनिंग में चला गया, ठीक है, तो उसका जो पोस्ट था उसको एक एक्टिंग प्रमोशन दे दिया गया और एक गवर्नमेंट सर्वेंट को टेम्पररी पीरियड के लिए एक्टिंग प्रमोशन दे दिया गया, ठीक है। तो ये जो ट्रेनिंग पीरियड है ये ड्यूटी में काउंट होगा, ठीक है। तो वही दिया है, हु आर ट्रीटेड एज ऑन ड्यूटी अंडर डैश। आप देख लीजिए फंडामेंटल रूल रूल 9 सबसेक्शन 6 देखिए, और जो सबसेक्शन 6 है उसका सेकेंड ऑप्शन देखिए, बिट बी को देखिए, इसमें क्लियरली मेंशन है यदि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट सपोज लॉन्ग पीरियड के लिए ट्रेनिंग में चला जाता है तब उसका जो प्लेस है एक एक्टिंग प्रमोशन देकर उसका प्लेस को फिल किया जाएगा, और जो गवर्नमेंट सर्वेंट ट्रेनिंग में गया उसको ड्यूटी माना जाएगा। और ये पूरा क्लियरली फंडामेंटल रूल 9 सबसेक्शन 6 उसका बीट बी में क्लियरली मेंशन है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल रूल 37 डैश shall be reduced by any amounts by which the recipient's pay may be increased and shall cease as soon as his pay is increased by an amount equal to his dash। 4 options, substantive pay, presumptive pay, personal pay, special pay, ये 4 ऑप्शंस दिया है। आप देख लीजिए फंडामेंटल रूल 37 पर्सनल पे आंसर होगा। मैं थोड़ा बता देता हूं, जब आपका पे अनोमली होता है, पे में कुछ एरर होता है, सपोज एनी एरर इज डिटेक्टेड इन योर पे अनोमली इज देयर, तो उस केस में आपको एक पर्सनल पे मिलता है। वो जो पे में एरर है कि पे में जो अनोमली है उसको कवर अप करने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा अमाउंट आपको दिया जाता है, वही एक्स्ट्रा अमाउंट वो पर्सनल पे होता है, ठीक है। क्योंकि आपका पे अनोमली से क्या है, आपको जो पे मिल रहा है वो कम मिल रहा है, उसको कवर अप करने के लिए उसमें एक अमाउंट को ऐड कर दिया जाता है जो आपको लॉस नहीं होगा, तो वही पर्सनल पे है, ठीक है। मगर जब आपका बेसिक पे जितना, सपोज आपका पर्सनल इतना ऐड किया गया है, आपका ये अमाउंट ऐड किया गया है, ये पर्सनल पे है, आपका पे अनोमली था, आपको पे जो था कम था क्योंकि उसमें एरर था, तो उसको एडजस्ट करने के लिए एक पर्सनल पे ऐड कर दिया गया ये अमाउंट। यदि
ये अमाउंट आपका बेसिक पे में ऑटोमेटिकली ऐड कर दिया गया, क्योंकि अभी इसको ये अमाउंट एक्स्ट्रा अमाउंट आपको दिया जा रहा है वो पे अनोमली को कवर अप करने के लिए, वही तो पर्सनल पे है। यदि आपका बेसिक पे इतना अमाउंट इंक्रीज कर दिया जाएगा तो आपका पर्सनल पे बंद बंद हो जाएगा। पर्सनल पे क्यों देंगे? क्योंकि आपका पे को हाइक कर दिया गया, ये अमाउंट जितना पर्सनल पे मिल रहा है, जितना पर्सनल पे मिल रहा है उतना ही अमाउंट आपका बेसिक पे को हाइक कर दिया गया, तो उसमें ऑटोमेटिकली पर्सनल पे को क्या किया, सीज कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वही अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल रूल 37 बोल रहा है। यदि आपको कोई एडिशनल पे मिल रहा है तो एडिशनल पे क्यों मिल रहा है? क्योंकि पे अनोमली था, पे में एरर था, तो आपको लॉस हो रहा था, तो उसको कवर अप करने के लिए एक एडिशनल अमाउंट दिया जा रहा था। यदि आपका बेसिक पे को अभी उतना अमाउंट, जितना अमाउंट आपको एक्स्ट्रा दिया जा रहा था, जो पर्सनल पे आपको मिलता था, उतना अमाउंट आपका बेसिक पे को हाइक कर दिया गया, तो वहां पर ही पर्सनल पे को सीज कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 8 को चलेंगे। द पे अंडर फंडामेंटल रूल 35 shall be restricted in a manner so that the increase in basic pay of the post held by the government servant prior to the officiating appointment, यहां पर officiating appointment related है, shall not exceed dash subject to a maximum of dash per month। एक officiating appointment होता है। officiating appointment क्या है? आपको एक हायर पोस्ट में आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया, ठीक है, एक हायर पोस्ट में आपको ये ऑफिशिएटिंग, ये परमानेंट प्रमोशन नहीं है। जैसे आपका एक प्रमोशन, जैसे 10 इयर्स आपका खत्म हुआ, आपको एक प्रमोशन मिला, ये नहीं है। ऑफिशिएटिंग मीन्स आपको एक हायर पोस्ट टेम्पररी पीरियड के लिए दे दिया गया। ऑफिशिएट के लिए एक हायर पोस्ट में आप जाकर यू कैरी मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू कैरी मोर बर्डन, okay, so your work burden is more than your it means which post actually you held। ठीक है, तो ये ऑफिशिएटिंग अपॉइंटमेंट जब आपका होता है तब उस केस में एक रेस्ट्रिक्शन होता है कि जो आपका ऑटोमेटिकली ऑफिशिएटिंग पोस्ट में जो टेम्पररी पीरियड के लिए आप हायर पोस्ट में चले गए और उसमें ज्यादा बर्डन आप बियर किया, कि ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कैरी किया, तो उसमें तो आपका पे को हाइक किया जाएगा। तो उसमें आपका पे मतलब एक रेस्ट्रिक्शंस होता है, यहां पर कितना पे हाइक हो सकता है आपका ऑफिशिएटिंग पोस्ट, जो बियॉन्ड में नहीं जाएगा। तो उसमें क्लियरली मेंशन है जो आपका पास्ट, जो प्रीवियस पोस्ट जो हेल्ड आप किए थे, बेसिक पे, यहां पर देखिए बेसिक पे ऑफ द पोस्ट हेल्ड, ठीक है, जो पोस्ट आप अभी हेल्ड किया है ऑफिशिएटिंग पोस्ट के पहले, प्रायर टू द ऑफिशिएटिंग पोस्ट, यही है। तो इसमें जो आपका बेसिक पे है, जब आप ऑफिशिएटिंग अपॉइंटमेंट में जाओगे, आपका ये जो पोस्ट ऑफ द बेसिक पे ऑफ द पोस्ट हेल्ड, अभी जो आप पोस्ट हेल्ड किया है बिफोर ऑफिशिएटिंग पोस्ट, उसमें 12% हाइक होगा। ठीक है, जो आपका प्रीवियस बेसिक पे है उसमें 12% हाइक कर दो, और अमाउंट के हिसाब से रुपीज मैक्सिमम इतना होगा 6700 तक। ठीक है, तो ये रूल है। यदि उसका बियॉन्ड में जाता है तो वो सब्सटेंशियल इंक्रीज कहा जाता है, एक रेस्ट्रिक्शन दे दिया। यदि आपको ऑफिशिएटिंग पोस्ट मिल गया, एक हायर पोस्ट आपको दे दिया गया टेम्पररी पीरियड के लिए, तो आपका पे तो हाइक होगा। तो पे कितना हाइक होगा? रेस्ट्रिक्शंस क्या है? जो आपका प्रीवियस बेसिक पे था उसमें 12.5% और अमाउंट के हिसाब से 6700, इससे क्रॉस नहीं होगा। यदि क्रॉस होता है उसको हम सब्सटेंशियल इंक्रीज बोलेंगे, आगे में हम डिस्कस करेंगे। वही दिया है, तो ऑप्शन आपको मिल गया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके ऊपर भी एक एग्जांपल है, आगे में हम डिस्कस करेंगे, मगर ये याद रखिए ये ऑफिशिएटिंग अपॉइंटमेंट के लिए, और ऑफिशिएटिंग अपॉइंटमेंट बेसिकली टेम्पररी पीरियड के लिए होता है, जो एक कंसर्न एम्प्लॉय को एक हायर पोस्ट दिया जाता है टेम्पररी पीरियड के लिए। ठीक है, जब हायर पोस्ट को बजाएगा ऑटोमेटिकली उसका पे हाइक होगा। तो पे हाइक कितना होना होगा? तो जो प्रीवियस बेसिक पे है उसमें 12.5% और अमाउंट के हिसाब से 6700, और ये क्रॉस होगा तो उसको सब्सटेंशियल इंक्रीज कहा जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नो पावर्स में बी एक्सरसाइज्ड
or delegated under which of rule of fundamental rule except after consultation with the Ministry of Finance। ऐसा कुछ है जो आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ कंसल्ट करना है, इसको छोड़ दीजिए, अदरवाइज आप नो पावर्स में भी एक्सरसाइज और डेलीगेटेड अंडर व्हिच रूल ऑफ एफआर एक्सेप्ट आफ्टर कंसल्टेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। आपको कभी भी जो डेलीगेशन पावर एक्सरसाइज करना है तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ आपको कंसल्ट करना है, अदरवाइज आपको पावर्स नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा रूल बोलता है फंडामेंटल रूल का, व्हिच ऑफ रूल ऑफ फंडामेंटल रूल ये दिया है। ठीक है, तो यहां पर क्लियरली देता है नो पावर्स में भी एक्सरसाइज और डेलीगेटेड अंडर व्हिच ऑफ रूल ऑफ फंडामेंटल रूल एक्सेप्ट आफ्टर कंसल्टेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ कंसल्ट करके कंसल्ट करो। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एक्चुअली एक पावर देता है कि हाँ आप ये कर सकते हो, अदरवाइज आपको ऐसा कुछ स्पेशल पावर नहीं मिलेगा कि आप आपका मर्जी में जो चाहे आप कर लोगे। ठीक है, तो ये जो है, ये जो डिस्कस किया गया है फंडामेंटल रूल 7, आप देखिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो यू आर बाउंड एक्चुअली टू कंसल्ट विद द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस टू गेट स्पेशल पावर, ओके, स्पेशल डेलीगेशन पावर टू डू सर्टन एक्टिविटीज। तो आप फंडामेंटल रूल 7 देख लीजिए। ठीक है, और इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है किसके साथ कंसल्ट करना है। सपोज आपको कोई पावर इट मींस एक्सरसाइज करना है, कुछ फाइनेंशियल डेलीगेशन पावर एक्सरसाइज करना है जो एक्स्ट्रा है, वो आपका परव्यू में नहीं आ रहा है, तो किसके साथ आप कंसल्ट करोगे? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बिना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से कंसल्ट करके आपको सपोज एक पावर्स आप होल्ड नहीं कर सकते, एक पावर्स को आप ऑपरेट नहीं कर सकते, तो विदाउट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आप वो पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकते। कुछ सर्टन पावर्स है जो आपका परव्यू में है, स्कोप में है, वो तो आप कर सकते हो, मगर ऐसा कुछ पावर्स है, स्पेशल पावर्स है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ कंसल्ट करने के बाद ही वो अप्रूवल मिलता है। तो ये फंडामेंटल रूल 7 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 10, द इनिशियल पे ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज अपॉइंटेड टू ए पोस्ट ऑन ए टाइम स्केल ऑफ पे इज रेगुलेटेड अंडर। देखिए सपोज आपको प्रमोशन मिल गया, ओके, सीनियरिटी के हिसाब से आपको प्रमोशन मिला, आपका एक पे फिक्सेशन होगा कि आप जैसे आप को डायरेक्ट अपॉइंटमेंट मिला गवर्नमेंट जॉब में, तो आप ज्वाइन कर रहे हो, आपका एक पे लेवल होता है, जैसे आपका पोस्ट के हिसाब से पे लेवल है। जैसे आपको एमएससीपी में आपको प्रमोशन मिला, ठीक है, तो जो मॉडिफाइड अस्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन में आपको प्रमोशन मिला, तो उसमें तो आपका पे फिक्स किया जाएगा ना, वो पोस्ट में जैसे प्रमोशन मिला तो आपका एक पे फिक्सेशन किया जाएगा। तो इसमें कौन सा फंडामेंटल रूल के हिसाब से होगा? यहां पर दिया है फंडामेंटल रूल 22 सबसेक्शन आई, उसका बीट ए और उसका बीट 1, फंडामेंटल रूल 9 सबसेक्शन 7, फंडामेंटल रूल 10, फंडामेंटल रूल 45 ए। तो आप ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, इसके हिसाब से इनिशियल पे फिक्स होगा फंडामेंटल रूल 22 सबसेक्शन आई, राइट। उसका एक बीट ए देखिए और उसका बीट ए का जो फर्स्ट स्टेटमेंट को देखिए, ठीक है, ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सो ये आज का 10 क्वेश्चंस था, मैं बताया था आपको फंडामेंटल रूल 26 to 40 में डिस्कस करूंगा ब्रीफली। तो ये तो क्वेश्चन 10 क्वेश्चंस हो गया, अभी हम सभी रूल को डिस्कस करेंगे। ये जो फंडामेंटल रूल 26 है ये इंक्रीमेंट्स रिलेटेड है। कौन सा पीरियड इंक्रीमेंट में इंक्लूड होगा और कौन सा पीरियड इंक्रीमेंट के लिए इंक्लूड नहीं होगा, which periods are included for increment और which periods are not included for increment, ये इंक्रीमेंट रिलेटेड है फंडामेंटल रूल 26। देखिए, ऑल ड्यूटी इन ए पोस्ट ऑन ए टाइम स्केल काउंट्स फॉर इंक्रीमेंट। तो ऑटोमेटिकली आप एज यूजुअल ड्यूटी कर रहे हो, मैं बताया था, ये आपका क्वालिफाइंग सर्विस मोर देन 6 months होना चाहिए। क्वालिफाइंग सर्विस जो मोर देन 6 months, जो ड्यूटी क्वालिफाइंग सर्विस ड्यूटी पीरियड मोर देन 6 months होगा तो ऑटोमेटिकली आपको इंक्रीमेंट मिलेगा। और इंक्रीमेंट 2 डेट होता है, जनवरी 1 और जुलाई 1, ये जो 7th पे कमीशन के हिसाब से। तो फर्स्ट तो कंफ्यूजन नहीं है। सेकंड क्या है, जैसे आप सर्विस इन अनदर पोस्ट वेदर इन ए सब्सटेंटिव और ऑफिशिएटिंग कैपेसिटी, अनदर पोस्ट में आप जा रहे हो,
जैसे सब्सटैंटिव ऑफिशिएटिंग में बताया था। ऑफिशिएटिंग क्या है ना, सपोज एक हायर पोस्ट में टेम्पोररी पीरियड के लिए आप जा रहे हो, कि डेपुटेशन आउट ऑफ इंडिया, कि आप लीव ले लिया एक्सेप्ट एक्स्ट्रा एंड लीव एक्सेप्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव टेकन अदरवाइज ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट। तो जो भी लीव आप ले रहे हो इसको छोड़ दीजिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट को छोड़ दीजिए। जो भी लीव आप ले रहे हो, चाहे ईएल ले रहे हो, ऑर्न लीव की, कैजुअल लीव की, कम्यूटेड लीव की, हाफ पे लीव की, लीव नॉट ड्यू, जो भी लीव ले रहे हो वो सभी इंक्रीमेंट्स के लिए काउंट होगा। ठीक है, टाइम्स के लिए, इंक्रीमेंट्स के लिए काउंट होगा, चाहे डेपुटेशन आउट ऑफ इंडिया, चाहे जो भी लीव आप ले रहे हो। मगर इसको छोड़ के एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट इसको मत लो। ईओएल इसके ऊपर आगे में डिस्कस करेंगे, विदाउट इसके ऊपर में डिस्कस, विदाउट एमसी इसको छोड़ दीजिए। बाकी जो भी लीव है इंक्रीमेंट्स के लिए ऑटोमेटिकली वो इंक्लूड होगा। डेपुटेशन आउट ऑफ इंडिया, कोई ऑफिशिएटिंग पोस्ट, कोई आपको हायर पोस्ट मिला टेम्पररी पीरियड के लिए, ठीक है, वही तो ऑफिशिएटिंग पोस्ट कैपेसिटी होता है। ठीक है, तो वो सब इंक्रीमेंट में इंक्लूड होगा। चलो यहां पर एक ईओएल के बारे में बता देता हूं, कंफ्यूजन नहीं होना है। क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ लेस देन 6 months ऑन अकाउंट ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव शैल हैव द इफेक्ट ऑफ पोस्टपोनिंग ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव विदाउट एमसी। यहां पर विदाउट एमसी, यहां पर क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ लेस देन 6 months ऑन अकाउंट ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव विदाउट एमसी, यहां पर ऐड कर दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट एमसी, विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट। आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव ले लिया विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट, सपोज ये हो गया मोर देन 6 months हो गया, तो यदि मोर देन 6 months होगा तो ईयर में आपका क्वालिफाइंग सर्विस कितना होगा, लेस देन 6 months हो जाएगा। जो क्वालिफाइंग सर्विस इसी केस में क्या होगा, लेस देन 6 months हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो याद रखिए, यदि आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव विदाउट एमसी आप ले रहे हो मोर देन 6 months, तो ऑटोमेटिकली आपका जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट वो पोस्टपोन होगा, नेक्स्ट इंक्रीमेंट आपको नहीं मिलेगा। यदि आपका सपोज आप बोल रहे हो कि मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव ले लिया विदाउट एमसी, विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट, विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट लेस देन 6 months है, आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव ले लिया विदाउट एमसी लेस देन 6 months, तो आपको इंक्रीमेंट, नेक्स्ट इंक्रीमेंट आपको मिलेगा। इंक्रीमेंट अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि लेस देन 6 months मींस आपका क्वालिफाइंग सर्विस कितना होगा, क्वालिफाइंग सर्विस ड्यूटी पीरियड कितना होगा, मोर देन 6 months, क्योंकि ये तो ड्यूटी पीरियड में काउंट नहीं होगा। तो ड्यूटी पीरियड में काउंट नहीं होगा तो क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट नहीं होगा। तो इसके लिए यदि आपका ईओएल विदाउट एमसी लेस देन 6 months है, तो आपका जो फ्यूचर इंक्रीमेंट वो अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि आपका इस केस में आपका जो ड्यूटी पीरियड है क्वालिफाइड सर्विस मोर देन 6 months हो जाएगा। सपोज एक एग्जांपल में देता हूं, सपोज आप अभी ले लिया एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव विदाउट एमसी, ठीक है, 5 months के लिए ले लिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो काउंट नहीं होगा आपका ड्यूटी पीरियड में, ये तो क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड नहीं होगा। अच्छा, ईयर में क्वालिफाइंग सर्विस कितना हो गया, 7 months हो गया, ड्यूटी पीरियड 7 months हो गया, जो मोर देन 6 months है, तो इसमें आपका जो फ्यूचर इंक्रीमेंट अफेक्ट नहीं होगा, इसको थोड़ा याद रखिए। और नेक्स्ट वन, यहां पर एक चीज में छोड़ दिया कि यहां पर आपको ऐड कर देना है एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव विदाउट एमसी, ठीक है, विदाउट एमसी। नेक्स्ट है फंडामेंटल रूल 26B, ये इस रूल को याद रखिए, इस रूल के ऊपर क्वेश्चन आएगा। यूएल टेकन ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस कवर्ड। अच्छा, आप इलनेस, सपोज यू आर सफरिंग इन एनी टाइप ऑफ इलनेस एंड आप मेडिकल सर्टिफिकेट दे रहे हो, तो ऑटोमेटिकली वो क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड होगा, क्योंकि ड्यूटी माना जाएगा। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, यूएल एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव विथ एमसी, तो विथ एमसी मींस वो क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड होगा, वो ड्यूटी पीरियड में इंक्लूड होगा, ठीक है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, तो उसमें आपका इंक्रीमेंट अफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन 26C को चलेंगे। 26 सबसेक्शन सी, द पीरियड ऑफ ऑफिशिएटिंग सर्विस इन द हायर पोस्ट विच। अच्छा, आप कोई हायर पोस्ट को जा रहे हो, ऑफिशिएटिंग पोस्ट में बताया कि टेम्पोररी पीरियड के लिए यू विल टेक हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू विल कैरी मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू विल कैरी मोर बर्डन। ऑफिशिएटिंग पोस्ट क्या है, टेम्पोररी पीरियड के लिए होता है। तो ऑटोमेटिकली जब आप ऑफिशिएटिंग पोस्ट में चले गए, तो आपका जो पास्ट पीरियड, आप जो पोस्ट हेल्ड किए थे, क्या वो इंक्रीमेंट के लिए काउंट होगा कि नहीं, काउंट होगा। तो वही दे दिया, हैव रेस्ट्रिक्टेड टू द पीरियड ड्यूरिंग व्हिच द गवर्नमेंट सर्वेंट वुड हैव ऑफिशिएटेड इन द लोअर पोस्ट बट फॉर हिज अपॉइंटमेंट टू द हायर पोस्ट। तो अभी आपको
आपको हायर पोस्ट मिला, मगर आपका लोअर पोस्ट में आप जितना दिन आपका जो ड्यूटी पीरियड है, जो क्वालिफाइंग सर्विस है, वो काउंट होगा इंक्रीमेंट के लिए, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वन, आप ये रूल को भी याद रखिए 26D, यदि आप फॉरेन सर्विस में चले जाते हो, चाहे कोई ऑटोनोमस बॉडीज, चाहे कोई कॉर्पोरेशन, चाहे कोई पब्लिक बॉडी, तो फॉरेन सर्विस वही होता है ना जहां पे आपको सैलरी मिलता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से। ठीक है, तो जब आप फॉरेन सर्विस में जाओगे, कि फॉरेन सर्विस क्या वो फॉरेन सर्विस काउंट होगा इंक्रीमेंट के लिए? होगा ऑटोमेटिकली इन द टाइम स्केल। ठीक है, और ज्वाइनिंग पीरियड, जैसे आपका ट्रांसफर हो गया, जो ट्रांसफर हो गया तो आप अभी ट्रांजिट जर्नी में हो, आपको एक ट्रांसफर केस में क्या है, एक हेडक्वार्टर आपको रिलीव कर दिया। ठीक है, अभी आपको रिलीव कर दिया गया, सपोज आज 25 नवंबर, आज आपको रिलीव कर दिया गया। अभी आप 3 डेज ट्रांजिट में रहोगे, अभी न्यू हेडक्वार्टर में आप ज्वाइन नहीं किया, ये जर्नी पीरियड है, क्या इसमें आप ये इंक्रीमेंट के लिए काउंट होगा? इंक्रीमेंट के लिए काउंट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये ट्रांजिट पीरियड है। ठीक है, ये इंक्रीमेंट के लिए काउंट होगा, क्योंकि आपका पब्लिक ट्रांसफर हुआ है। मैं रिक्वेस्ट ट्रांसफर का बात नहीं कर रहा हूं, रिक्वेस्ट ट्रांसफर है तो आपको सीएल कोई लीव लेना है, मगर जब ये पब्लिक ट्रांसफर होता है तो आपका जर्नी पीरियड जो है, ट्रांजिट पीरियड है, वही ज्वाइनिंग टाइम पीरियड है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा ना, इंक्लूड होगा। जैसे आपको ज्वाइनिंग पीरियड मिलता है, जैसे ज्वाइनिंग पीरियड आपको ज्वाइनिंग टाइम मिलता है, जैसे ऐसे है ना, अप टू 1000 किलोमीटर आपका जर्नी है, तो आपको 10 डेज मिलेगा ज्वाइनिंग टाइम। आप समझ रहे कि नहीं? तो ये जो ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा, क्या ये इंक्रीमेंट के लिए काउंट होगा? होगा इंक्रीमेंट के लिए, क्यों नहीं होगा? ये ड्यूटी और क्वालिफाइंग सर्विस ड्यूटी पीरियड में काउंट होगा। ठीक है, चलो फंडामेंटल रूल 27 को चलेंगे। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फंडामेंटल रूल 27 ये बोल रहा है प्री मैच्योर इंक्रीमेंट। प्री मैच्योर इंक्रीमेंट, तो प्री मैच्योर इंक्रीमेंट क्या है? एक अथॉरिटी ग्रांट कर सकता है प्री मैच्योर इंक्रीमेंट, पर जो अथॉरिटी के पास पावर है वो एक पोस्ट क्रिएट कर सकता है। ये क्वेश्चन आता है। मैं जो ग्रीन में लिखा ना जो सेंटेंस, वही इंपॉर्टेंट है कि यदि द अथॉरिटी हु ग्रांट प्री मैच्योर इंक्रीमेंट, दिस अथॉरिटी हैज पावर टू क्रिएट ए पोस्ट, उसके पास पावर है, उसी कैडर में वो एक पोस्ट क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो वो प्रीमैच्योर इंक्रीमेंट दे सकता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट, फंडामेंटल रूल 28 देखिए, पे व्हेन ट्रांसफर टू लोअर पोस्ट, पेनाल्टी लग गया, मेजर पेनाल्टी में सपोज इसमें क्या है, आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा लोअर पोस्ट में, तो वही दिया द अथॉरिटी which orders the transfer of a government servant as a penalty from a higher to a lower grade or post may allow him to draw any pay not exceeding the maximum of the lower grade or post which it may think proper। देखिए इसमें क्या दे दिया कि सपोज आप पे लेवल, आपका जो पे लेवल था सपोज 8 था, ठीक है, अभी आपको ट्रांसफर कर दिया गया, पे लेवल 7 को ट्रांसफर कर दिया गया, पेनल्टी लगा, पेनल्टी जो मेजर पेनल्टी, और आपका पे लेवल ये प्रेजेंट पे लेवल था, अभी आपको शिफ्ट कर दिया गया पे लेवल 7 में। मगर यहां पर देखेंगे पे लेवल 7 में जो आप देखिए उसका सेल है, तो उसका जो मैक्सिमम, जो पे लेवल 7 का जो मैक्सिमम, देखिए पे लेवल, यहां पर पे लेवल 7 ना, उसका सेल सब है, इसका जो मैक्सिमम जो अमाउंट है उससे ज्यादा नहीं होगा आपका बेसिक पे। यदि आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा पे लेवल 8 टू पे लेवल 7, तो अब पे लेवल 7 में, ठीक है, जो सेल, डिफरेंट सेल है ना, ये डिफरेंट सेल है, जो मैक्सिमम अमाउंट से ज्यादा नहीं होगा, तो वही दिया है। ठीक है, तो उसका सेल में क्या है, उसका पे बढ़ता है ना, तो पे लेवल 7 में एक मैक्सिमम अमाउंट आता है, वो मैक्सिमम अमाउंट से आपका पे लेवल फिक्स जो होगा उससे ज्यादा नहीं होगा, तो यही है। तो यहां पर एक ये पर्टिकुलरली वही चीज बोलता है कि जिस लोअर पोस्ट को, जैसे पे लेवल
8 था, अभी आपको ट्रांसफर कर दिया गया पे लेवल 7 में। तो पे लेवल 7 में जो मैक्सिमम अमाउंट है वो मैक्सिमम अमाउंट को वो क्रॉस नहीं करेगा। जो आपका पे फिक्स होगा पे लेवल 7 में, जो आपका पे फिक्स होगा वो जो आपको पे मिलेगा वो पे लेवल 7 का जो मैक्सिमम सेल का अमाउंट है, जो मैक्सिमम सेल का अमाउंट है उससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है। और इसके ऊपर जनरली मैं एक एग्जांपल दे दिया। यहां पर मेन चीज फंडामेंटल रूल 28, जो ये सेंटेंस को याद रखिए और ये रूल को याद रखिए। ठीक है। अभी थोड़ा एक एग्जांपल हम देखेंगे। देखिए एग्जांपल में दे दिया, द पेनल्टी ऑफ रिडक्शन टू द लोअर ग्रेड कैरिंग ए लेवल 8 फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years imposed on a government servant who is at level 9 with effect from 4th November 2018। तो आपका जो पे लेवल था लेवल 9 था, एक्चुअली पे लेवल 9 था, मगर अभी आपको ट्रांसफर कर दिया गया पे लेवल 8 को 2 years के लिए। 2 years के लिए आपको शिफ्ट कर दिया गया लोअर पे लेवल में। ठीक है। और इफेक्ट कब से हुआ ना, 4th November 2018 आपका ये इफेक्ट हुआ। और उसमें क्लियरली मेंशन होगा रिडक्शन शैल नॉट पोस्टपोन। आपका जो फ्यूचर इंक्रीमेंट वो पोस्टपोन नहीं होगा। ऑर्डर में मेंशन है आपका जो पे लेवल था उसको रिड्यूस कर दिया गया, पेनल्टी मेजर पेनल्टी लगा। लेवल 9 में आप थे, अभी पे लेवल 8 को शिफ्ट कर दिया गया, मगर इसमें आपका फ्यूचर इंक्रीमेंट अफेक्ट नहीं होगा। फिर जब आपका ये जो करेंसी पीरियड है, पेनल्टी पीरियड है, वो जब एक्सपायरी हो जाएगा फिर आप पे लेवल 9 को आ जाएंगे। ही शैल रीगेन हिज ओरिजिनल सीनियरिटी ओके इन द हायर ग्रेड। ओके ठीक है। आप फिर आपका जो ओरिजिनल सीनियरिटी था वो आप रीगेन करेंगे। ठीक है। अच्छा, तो 4th नवंबर जिससे आपका पेनल्टी इफेक्ट हुआ, उस समय आपका पे लेवल तो 9 था, तो आपका ₹58,000 पे लेवल 9 में था, वो पे मैट्रिक्स था। तो इससे पेनल्टी इफेक्ट हुआ, तो पेनल्टी इफेक्ट होने से आपको लेवल 9 से ट्रांसफर कर दिया गया लेवल 8 को। ठीक है कि नहीं? कितना ईयर्स के लिए? 2 years के लिए। और जब आपको ट्रांसफर कर दिया गया, जिस डेट से एक्चुअली पेनल्टी इफेक्ट हुआ उसमें 4th November 2018 से हुआ हमारा क्वेश्चन के हिसाब से। और उस समय पे लेवल 9 में आपका पे स्केल क्या था? ₹58,000 था। ठीक है। तो देखिए इस केस में और एक मजा बात है, इसमें आपका फ्यूचर इंक्रीमेंट पोस्टपोन नहीं होगा। फ्यूचर इंक्रीमेंट पोस्टपोन नहीं होगा। और ऑर्डर में मेंशन है कि जब आपका पेनल्टी पीरियड खत्म हो जाएगा तब आप ओरिजिनल सीनियरिटी रीगेन करेंगे। ठीक है। तो उसके ऊपर मैं एक टेबल बनाया, थोड़ा देख लीजिए। देखिए तो आपका जो ये आप देख लीजिए, द पेनल्टी ऑफ रिडक्शन टू द लोअर ग्रेड कैरिंग लेवल 8 फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years इज इम्पोज। इसमें देखिए फर्स्ट 2 years बिफोर आप जाइए, जैसे 13 अगस्त 2016 में आपका लेवल 9 ₹54,700 था, सेकेंड सेल इन लेवल 9 था। ठीक है। और लेवल 8 में कितना था? 52,000, जो लेवल अभी आपको रिड्यूस कर दिया गया। ये रिड्यूस्ड लेवल है, 52,000 था, 4th सेल में आप थे। तो फिर इंक्रीमेंट लगा 1 जनवरी, सपोज 1 जुलाई में इंक्रीमेंट लग रहा है, तो आपका लेवल 9 में 56,300 हो गया, थर्ड सेल को आ गए। और यहां पर लेवल 8 जो आपको रिड्यूस कर दिया गया वो वहां पर 53,600 हो गया, आप 5th सेल को आ गए। 1 जुलाई 2018, ठीक है। तो आपका लेवल 9 में ₹58,000 है, अभी आप 4th सेल में है। और लेवल 8 में ₹55,200 6th सेल में है। ठीक है। फिर आपके ऊपर पेनल्टी लगा। पेनल्टी इफेक्ट कब से हुआ? ये पेनल्टी इफेक्ट हुआ, मैं जो टिक लगा दिया, ये पेनल्टी इफेक्ट हुआ। तो 3rd नवंबर 2018 में आपका लेवल 9 में ₹58,000, क्योंकि 5 जुलाई 2018 में आपको इंक्रीमेंट मिल चुका है। और इसी समय उसका भी लेवल आपको लेवल 8 में अभी शिफ्ट कर दिया गया, तो उस समय कितना था? 55,200 6th सेल इन लेवल 8। ठीक है। तो जब पेनल्टी ऑर्डर एक्चुअली इफेक्ट हुआ
तब आपको आपका पे स्केल ये हो गया 55,200। ठीक है, यही फिक्स हुआ क्योंकि आपका पेनल्टी से आपको लेवल 9 से लेवल 8 को शिफ्ट कर दिया गया। और उसमें क्लियरली मेंशन है, यहां पर थोड़ा देख लीजिए, यहां पर क्लियरली मेंशन है कि द पेनल्टी ऑफ रिडक्शन टू द लोअर ग्रेड कैरिंग लेवल 8 फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years, फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years, तो इज इम्पोज्ड ऑन ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज एट लेवल 9 विथ इफेक्ट फ्रॉम, ये देख लीजिए, तो पेनल्टी ऑफ रिडक्शन टू द लोअर ग्रेड कैरिंग लेवल 8 फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years इज इम्पोज्ड। ठीक है, तो रिडक्शन शैल नॉट पोस्टपोन फ्यूचर इंक्रीमेंट्स एंड ऑन द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ही शैल रीगेन। समझ में आया? तो पेनल्टी ऑफ रिडक्शन टू द लोअर ग्रेड कैरिंग लेवल 8 फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years इज इम्पोज्ड ऑन ए गवर्नमेंट सर्वेंट। तो किस हिसाब से आपको आपका पे लेवल फिक्स हुआ यहां पर दे दिया, ये इस एग्जांपल में देख लीजिए। जैसे आपको एक्चुअली आप इसमें प्रमोशन हुआ था, यहां पे आपको प्रमोशन मिला था, मैं बोला था आप डायरेक्ट सपोज लेवल 8 में आप डायरेक्ट ज्वाइन किया है, उसमें पेनल्टी से आपको लेवल 8 को रिड्यूस नहीं किया जाएगा क्योंकि आप डायरेक्टली लेवल 9 में ज्वाइन किया है। तो डायरेक्टली लेवल 9 में ज्वाइन किया है मींस ये पेनल्टी नहीं लगेगा। मगर पहले आपका जो पे लेवल था 8 था, प्रमोशन से आप लेवल 9 में आए थे और पेनल्टी लगा, फिर आप लेवल 8 को आपको रिड्यूस कर दिया गया 2 years के लिए, मगर उसमें फ्यूचर इंक्रीमेंट एक्चुअली पोस्टपोन नहीं होगा। ठीक है, तो आपको वो पूरा पे स्केल ऐसे एग्जांपल में दिया है, जैसे पूरा आपको कैलकुलेट करना है कि 13/8/2000, क्योंकि उसमें देखना है कि आप इसी पीरियड में आपका प्रमोशन हुआ था, इसी पीरियड में प्रमोशन हुआ था लेवल 8 टू लेवल 9, तो तब आपका लेवल 8 में 52,000 था बेसिक पे, 4 सेल में थे, अभी आप 54,700 सेकेंड सेल को आ गए लेवल 9 में, इसी पीरियड में आपका प्रमोशन हुआ। ठीक है, ये प्रमोशन पीरियड है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उसके हिसाब से आप निकाल दीजिए। 1 जुलाई इंक्रीमेंट लगा तो दोनों में देख लीजिए, और अगेन 1 जुलाई 2018 इंक्रीमेंट लगा, और जस्ट पेनल्टी लगा 4/11 से, तो 4 नवंबर से 3 नवंबर को आप देख लीजिए लेवल 9 में आपका पे लेवल क्या था, लेवल 8 में क्या था, और 4th में जो पेनल्टी लगा आपको लेवल 8 में आ गए आप, तो लेवल 8 में आपका जो पे फिक्स होगा यही होगा। ठीक है, क्योंकि आप लेवल 8 जब प्रमोशन में जा रहे हो लेवल 8 टू लेवल 9, तो अब आपको पेनल्टी लगेगा। आप वो जो पहले जो पोस्ट हेल्ड किए थे, वो सपोज डायरेक्टली आप लेवल 9 में थे, पोस्टिंग आपका हुआ था, तो ये पेनल्टी नहीं लगेगा कि आप लेवल 9 से लेवल 8 को आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं। लेवल 8 से लेवल 9 आपका प्रमोशन हुआ था 13/8/2016 में। ठीक है, और उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करके आपका एक पे फिक्स होगा। और अभी जैसे आप प्रमोशन हुआ था तब लेवल 8 से लेवल 9 को, अभी जो मेजर पेनल्टी लगा आपका पोस्ट को रिड्यूस कर दिया गया, क्योंकि आप जब फर्स्ट ज्वाइन किए थे लेवल 8 में, उसी पोस्ट को आपको ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है, इसको थोड़ा देख लीजिए कैसे फिक्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन, फंडामेंटल रूल 29 क्या बोल रहा है कि रिडक्शन एज ए मेजर ऑफ पेनल्टी टू ए लोअर स्टेज। ये देखिए, लोअर स्टेज रिडक्शन एज ए मेजर ऑफ पेनल्टी टू ए लोअर स्टेज if a government servant is reduced as a measure of penalty to a lower stage in his time scale में, सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं, लेवल 9 था मगर आपको अभी लेवल 7 को, ठीक है, उसी पे लेवल में आप लेवल सेल को टाइम स्केल दिया है, मेजर ऑफ पेनल्टी टू ए लोअर स्टेज इन इज टाइम स्केल, द अथॉरिटी ऑर्डरिंग सच रिडक्शन shall state the period for which it shall be effective and whether on restoration the period of reduction shall operate to। अच्छा, इस तरीके का मैं एग्जांपल एक दे दूंगा, इसमें क्लियरली मेंशन होगा, यदि आपको लोअर स्टेज में, लोअर पोस्ट में आपको ट्रांसफर कर दिया गया, कि लोअर पे लेवल में आपको ट्रांसफर कर दिया गया, तो वो जो ऑर्डर होगा वो कब से इफेक्टिव होगा, फ्रॉम व्हिच डेट एक्चुअली द ऑर्डर वुड बी इफेक्टिव ऑन। अच्छा, नेक्स्ट वन, यदि आपका रेस्टोरेशन, जो करेंसी पेनल्टी करेंसी पीरियड है वो खत्म हो जाएगा, आपको रेस्टोर कर दिया जाएगा, तो क्या आपका फ्यूचर इंक्रीमेंट पोस्टपोन होगा ना, फ्यूचर इंक्रीमेंट पोस्टपोन नहीं होगा, तो वो सब ऑर्डर में क्लियरली मेंशन होगा कि इसी डेट से पेनल्टी इफेक्टिव हुआ, कितना साल के लिए इफेक्टिव होगा, क्या जो पेनल्टी करेंसी पीरियड रहेगा उसमें आपका इंक्रीमेंट आपको मिलेगा कि इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, और आपको जब रेस्टोर कर दिया जाएगा
जब रेस्टोर कर दिया जाएगा, जब आपका पेनल्टी पीरियड खत्म हो जाएगा, आप फिर आपका सीनियरिटी रीगेन करेंगे। आपका जो पे लेवल था, आप वही पे लेवल में कि जो पोस्ट था वही पोस्ट में आप चले जाएंगे। ये सब ऑर्डर में मेंशन होना चाहिए, ठीक है। ये FR29 बोल रहा है, ठीक है। तो उसमें ये दे दिया, देखिए ये क्लियरली मेंशन है कि क्या क्या मेंशन होगा ऑर्डर में। ऑर्डर में जो रिडक्शन हुआ कब से इफेक्टिव हुआ, एक पर्टिकुलर डेट से इफेक्टिव होगा। नेक्स्ट वन, यदि आपको रेस्टोर कर दिया जाता है, आपका पेनल्टी पीरियड खत्म हो गया, देन अगेन यू रेस्टोर बैक टू द योर ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल पोस्ट, तो उसमें क्या आपका फ्यूचर इंक्रीमेंट्स पोस्टपोन होगा ना? नहीं होगा। यदि फ्यूचर इंक्रीमेंट पोस्टपोन होगा, बंद किया कर दिया जाएगा फ्यूचर इंक्रीमेंट, तो व्हाट एक्सटेंट, कितना साल के लिए, ठीक है। थर्ड वन क्या है, यदि आप रीगेन कर लेते हो, आपका पेनल्टी पीरियड खत्म हो जाता है और आपका ओरिजिनल पोस्ट आप रीगेन करते हो, क्या उसमें आपका जो ओरिजिनल सीनियरिटी है कि जो पोस्ट है वो आप रीगेन करोगे? आप समझ रहे हो कि नहीं? तो ये ऑर्डर में मेंशन होगा कब से आप एक्चुअली आपका पेनल्टी पीरियड इफेक्टिव होगा, और पेनल्टी पीरियड फॉर हाउ मेनी ईयर्स एक्चुअली इट वुड बी इम्पोज्ड, और यदि पेनल्टी पीरियड में क्या आपको फ्यूचर इंक्रीमेंट मिलेगा कि फ्यूचर इंक्रीमेंट पोस्टपोन होगा, और पेनल्टी पीरियड खत्म होने के बाद आप आपका ओरिजिनल पोस्ट रीगेन करेंगे और उसमें आपका सीनियरिटी ये सब मेंटेन होगा। तो ये ऑर्डर में मेंशन, ठीक है, होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल रूल 29, ठीक है। उसमें एक एग्जांपल में दे दिया, देखिए यहां पर दे दिया कि द पेनल्टी ऑफ रिडक्शन टू योर लोअर स्टेज बाय 2 स्टेजेस। 2 स्टेजेस क्या है, जैसे आप लेवल 9 में थे, अभी लेवल 7 को चले गए। 2 स्टेजेस मींस वही है, सेम पे लेवल में, सॉरी जो पे लेवल था, पे लेवल 9 में थे आप, अभी आपको पेनल्टी लगने के बाद आप लेवल 7 में चले गए, वही है बाय 2 स्टेजेस। तो पेनल्टी ऑफ रिडक्शन टू ए लोअर स्टेज बाय 2 स्टेजेस इन द टाइम स्केल ऑफ पे फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर दिया है। 1 ईयर आपको इंपोज होगा जो पेनल्टी पीरियड, और इफेक्ट होगा 13 अगस्त 2024 से ये इफेक्टिव होगा। कितना स्टेज रिड्यूस होगा? 2 स्टेजेस रिड्यूस होगा। और कब से इफेक्ट होगा ना? 13 अगस्त में से इफेक्ट होगा। और इसमें दिया है गवर्नमेंट सर्वेंट वुड नॉट अर्न इंक्रीमेंट। अच्छा, ये जो पेनल्टी पीरियड है आपको इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, इट मींस आपका फ्यूचर इंक्रीमेंट को पोस्टपोन कर दिया गया, ठीक है। द गवर्नमेंट सर्वेंट यहां पर दे दिया, द गवर्नमेंट सर्वेंट इज ड्रॉइंग ₹50,500 इन लेवल 7 ऑफ द पे मैट्रिक्स। तो अभी आपका जो पे लेवल है लेवल 7 है, लेवल 7 है, और आपको 50,500 मिल रहा है। तो पे वुड बी फिक्स्ड ऑन द फॉलोइंग। तो अभी हम एक टेबल में हम देखेंगे, तो उसमें आप क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे यहां पर 2 स्टेजेस रिड्यूस हुआ, कितना टाइम के लिए? 1 ईयर के लिए। कब से इफेक्टिव हुआ? 13 अगस्त। और इसमें आपका फ्यूचर इंक्रीमेंट, पोस्टपोनिंग फ्यूचर इंक्रीमेंट आपको नहीं मिलेगा। और अभी जो पे स्केल है, आप पे लेवल 7 में है, और पे वुड बी फिक्स्ड कैसे? 2 स्टेजेस जो है आप अभी हम देखेंगे, तो लेवल पे लेवल 7 में आपको 50,500 मिल रहा है, उसके हिसाब से आप देख लीजिए यहां पर। तो आप 5th सेल में आ जाएंगे। वही 2 स्टेजेस मींस क्या? सेल हम देखेंगे, इसमें सेल देखेंगे कि आप वही लेवल 7 में है। 2 स्टेजेस मींस आप जो सेल में है, सपोज सेल 7 में है, अभी आप सेल 5 को ट्रांसफर हो जाएंगे। पे लेवल 7 है, 2 स्टेजेस मींस यही है, ठीक है कि नहीं? सेल 7 से सेल 5 को आप आ जाएंगे, 2 स्टेजेस। इसमें यदि आप लोअर पोस्ट को चले जाते हो तब ये लेवल चेंज होगा, मगर यहां पर 2 स्टेजेस दिया है। 2 स्टेजेस मींस सेल को हम देखेंगे। 2 स्टेजेस मींस हम सेल 7 में थे, अभी सेल 5 को चले जाओगे पेनल्टी की वजह से। तो अभी वही है, देखिए यहां पर दे दिया कि डेट ऑफ इंक्रीमेंट इज इधर 1 जनवरी इंक्रीमेंट मिलेगा कि 1 जुलाई में मिलेगा। पे व्हेन पेनल्टी इंपोज्ड, आपका जब पेनल्टी इंपोज हुआ, ये पे लेवल था, आप पे लेवल 7 में थे। अच्छा, अभी वही 1 जनवरी 1 जुलाई सेम होगा।
5th सेल में है आप, अभी आपका 2 स्टेजेस रिड्यूस हो गया। 2 स्टेजेस मींस 3rd सेल को आगे ये रिड्यूस्ड पे विथ इफेक्ट फ्रॉम 13th अगस्त से 2 स्टेजेस आपका रिड्यूस हो गया। वही लेवल 7 सेल 5 में थे, अभी सेल 3 को आ गए, क्योंकि 2 स्टेजेस आपको रिड्यूस कर दिया गया पेनल्टी के वजह से। तो अभी आपका पे कितना हो गया 47,600, और यहां पर इंक्रीमेंट लगता है 1 जुलाई में 47,600। और इसमें क्लियरली दिया है कि आपका करेंसी पीरियड में इंक्रीमेंट नहीं लगेगा। इंक्रीमेंट जो ये जो आपका जो पेनल्टी लगा अभी 12 अगस्त 2020 इतना तक अभी पेनल्टी आपको रहेगा, पेनल्टी पीरियड 2025 तक, क्योंकि 1 ईयर के लिए पेनल्टी लगा है। तो उसमें कि इंक्रीमेंट आएगा, इधर 1 जनवरी है कि 1 जुलाई है, मगर यहां पर दिया है क्या है, आपको इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। तो पे विथ इफेक्ट फ्रॉम, ये देखिए ये पेनल्टी पीरियड है, ठीक है कि नहीं। तो ये वही रहेगा पे ड्यूरिंग करेंसी पीरियड, इसमें भी वही रहेगा, क्योंकि आपको फ्यूचर इंक्रीमेंट आपको पोस्टपोन किया है, इंक्रीमेंट एक मिलना चाहिए। आप ये पीरियड देखिए, ये पेनल्टी पीरियड, तो इसमें एक इंक्रीमेंट आइदर 1 जनवरी है कि 1 जुलाई है, मिलना चाहिए। मगर इसी पीरियड के अंदर आपका क्लियरली मेंशन है वहां पर ऑर्डर में कि आपका फ्यूचर इंक्रीमेंट पोस्टपोन होगा, तो वही पे लेवल रहा। यहां पर दे दिया नो इंक्रीमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ पेनल्टी, नो इंक्रीमेंट ड्यूरिंग द ऑटोमेटिकली। इसमें एक 1 जनवरी 2025 आना चाहिए, और यहां पर 1 जुलाई 2025 आना चाहिए जो इंक्रीमेंट। यदि आप 1 जनवरी आपका इंक्रीमेंट है तो 1 जनवरी 2025, और यदि 1 जुलाई है 1 जुलाई 2025, मगर आपको इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा क्योंकि आपका फ्यूचर इंक्रीमेंट को पोस्टपोन किया गया है क्वेश्चन में। नेक्स्ट, जब आप रीगेन करेंगे फिर आ जाएगा 13/8, क्योंकि पेनल्टी पीरियड था, ये था 13/8/2025 टू था 12/8/2025, 1 ईयर के लिए था। तो अभी जो पे फिक्सेशन हुआ, जो पहले जो पे था वही पे, क्योंकि फ्यूचर इंक्रीमेंट तो नहीं मिला, अभी आप फिर लेवल 7 5th सेल लेवल 7 को आ जाएंगे 1 जनवरी में 50,500, और इसमें आ जाएंगे 1 जुलाई में 13/8 में आपका वही 50,500 होगा, क्योंकि समझ में आ गया कि नहीं। फिर आप वही आपका ओरिजिनल पोस्ट में जो पे लेवल था वही आपको मिला, समझ रहे कि नहीं। इसमें आपको फ्यूचर इंक्रीमेंट नहीं लगेगा उस पीरियड के अंदर। नेक्स्ट इंक्रीमेंट कब मिलेगा, यदि 1 जनवरी है 1/1/2026 में आपको इंक्रीमेंट मिलेगा और 52,000 होगा जो 6 सेल को आप आएंगे। और यदि आपका 1 जुलाई है तो 1 जुलाई 2026 में आपका 52,000 होगा, आप 6 सेल में आएंगे, और ऐसे कैलकुलेट होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2 स्टेजेस मीन सेम पे लेवल रहेगा, सेल आपका रिड्यूस कर दिया जाएगा, ठीक है। और यदि आपको पोस्ट रिड्यूस कर दिया जाता है, पोस्ट ऑटोमेटिकली, पोस्ट जब रिड्यूस होगा आपका पे लेवल रिड्यूस होगा। सपोज लेवल 9 में लेवल 7 को चले जाएंगे, जब पोस्ट रिड्यूस होगा लोअर पोस्ट को आप चले जाओगे, ठीक है। मगर यहां पर 2 स्टेजेस मीन सेम पे लेवल, सेल 2 स्टेजेस कम हो जाएगा, ठीक है। और इसमें फ्यूचर इंक्रीमेंट आपको नहीं मिलेगा। तो ये एग्जांपल देखिए, आपका समझ में आ जाएगा। यहां पर एक FR29A है, ऑर्डर ऑफ पेनल्टी सेट असाइड, माने आपके ऊपर जो पेनल्टी लगा था वो पेनल्टी रिव्यू में वो पेनल्टी को एग्जेम्प्ट कर दिया गया। इट मींस यू हैव एक्सोनरेटेड फ्रॉम द पेनल्टी, वो पेनल्टी को एग्जेम्प्ट कर दिया गया, सेट असाइड कर दिया गया। तो सेट असाइड करने के बाद क्या होगा, इसमें 2 चीज होगा कि जब पेनल्टी लगा, ये दो चीज देख लीजिए। जब पेनल्टी लगा तो आपका ऑटोमेटिकली पे फिक्स हुआ, तो अभी आपका ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया गया, तो आप एक्चुअली कितना ड्रॉन करना था और आपको कितना मिल रहा था पेनल्टी के बाद। पेनल्टी के पहले यदि आपके ऊपर पेनल्टी नहीं होता तो कितना ड्रॉ करते, और पेनल्टी लगा आप कितना ड्रॉ किया, उसमें जो डिफरेंस है वो अमाउंट मिल जाएगा आपको। आप समझ रहे कि नहीं। तो क्योंकि जो पेनल्टी लगा था उसको सेट असाइड कर दिया गया, तो पेनल्टी लगने के वजह से आपका पे ड्रॉन कितना था, और जब पेनल्टी नहीं लगेगा तो आपका पे ड्रॉन कितना था, उसमें जो डिफरेंस आएगा वो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा, ठीक है, वो आपको मिलेगा।
ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट है, यदि से ऑर्डर में मॉडिफाई होता है, जो आपका ये पेनल्टी को सेट असाइड कर दिया गया और उसमें मॉडिफाई किया गया, तो उसमें आपका पे रेगुलेटेड होगा कि अभी उसके ऊपर जो पेनल्टी लगा था उसको सेट असाइड कर दिया गया, तो इसके वजह से क्या है, उसका पे लेवल में कोई चेंजेस नहीं होगा। जो पहले जो उसका पे लेवल को रिड्यूस नहीं किया जाएगा, क्योंकि अभी पेनल्टी लगने से उसका पे लेवल को रिड्यूस किया गया है, कि उसका पोस्ट को रिड्यूस किया गया है, कि उसको टू जो सेल है स्टेजेस के हिसाब से सेल को रिड्यूस किया गया है। तो अभी ऑर्डर में क्लियरली मेंशन होगा कि अभी उसको पेनल्टी को सेट असाइड कर दिया गया, तो ये मॉडिफाई हो गया, क्योंकि पहले उसके ऊपर 2 स्टेजेस रिड्यूस था कि पोस्ट को रिड्यूस किया गया था, ये भी नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये 29A बोल रहा है, फंडामेंटल रूल 29A। ठीक है, इसको ज्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे, चलो आगे में चलते हैं। FR 31A, पे रेगुलेटेड ड्यूरिंग प्रमोशन और अपॉइंटमेंट एरोनियस। सपोज आपका प्रमोशन और अपॉइंटमेंट में कुछ गलत है, आपका जो आपको जो प्रमोशन मिला कि जो अपॉइंटमेंट एरोनियस है, इसमें सपोज कभी कभी क्या है, जो पे फिक्स हुआ, प्रमोशन तो हुआ, आपका प्रमोशन हुआ, आपको प्रमोशन में अपॉइंटमेंट मिला, मगर उसमें पे फिक्सेशन में थोड़ा गलत आ गया, पे में एरोनियस आ गया, तो उस केस में मैटर किसके पास जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सपेंडिचर के पास जाएगा। shall be regulated in accordance with general special orders issued by the president। पर इस केस में यदि पे में पे अनोमली होता है, इसमें यदि पे में कुछ गलत होता है तो उसको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो डिपार्टमेंट में, जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है, उसको जाएगा। ठीक है, और उस केस में कुछ मैटर्स है, केसेस ऑफ एरोनियस प्रमोशन और अपॉइंटमेंट इज ए सब्सटैंटिव और ऑफिशिएटिंग कैपेसिटी शुड बी व्यूड विथ सीरियस कंसर्न एंड सुइटेबल डिसिप्लिन। तो ऑटोमेटिकली कि आपको जो प्रमोशन और अपॉइंटमेंट मिला, जो सब्सटैंटिव हो कि ऑफिशिएटिंग मींस टेम्पोररी, सब्सटैंटिव मींस आपका परमानेंट, जैसे परमानेंट प्रमोशन हुआ, एज यूजुअल आपका कैडर में प्रमोशन होता है। ठीक है, और नहीं तो आपको एक हायर पोस्ट ऑफिशिएटिंग कैपेसिटी में टेम्पोररी पीरियड के लिए दे दिया गया, उसमें यदि कोई एरर होता है तो उसमें जो एरर किया उसके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। ठीक है, और इसमें दिया है द ऑर्डर्स रीफिक्सिंग, यदि आपका पे को रीफिक्स किया जाएगा तब वो मैटर किसके पास जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के पास जाएगा। यदि पे में कुछ एरर है तो वो रीफिक्स होगा, मगर वो रीफिक्स होगा किसका अप्रूवल से, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और अंडर में जो है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, उसका अप्रूवल से फिर आपका पे को रीफिक्स किया जाएगा। ठीक है, और उसमें कुछ मैटर से आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, द फॉलोइंग प्रोसीज्योर should be followed while cancelling orders relating to confirmation of a government servant which are later on found to be erroneous। आपको तो इट मींस अपॉइंटमेंट दे दिया गया, मगर अपॉइंटमेंट में कुछ एरोनियस है, अपॉइंटमेंट रॉन्ग है, तो आपका अपॉइंटमेंट को कैंसिल किया जाएगा इस मैटर में। तो कंफर्मेशन कैन बी कैंसल्ड, क्योंकि उसके लिए तो आपको और कोई तो ऑल्टरनेटिव नहीं है पोस्ट, ये दिया, इफ द ऑर्डर ऑफ कंफर्मेशन वाज क्लियरली कंट्रारी टू द स्टैट्यूटरी रूल्स एंड देयर इज नो पावर और डिस्क्रिशन टू रिलैक्स द रूल्स। रूल्स के हिसाब से हम देखेंगे, आपको जो आपका जो पोस्ट कंफर्मेशन किया गया, चाहे आपको जो प्रमोशन दे दिया गया, ठीक है, हायर पोस्ट में जो अपॉइंटमेंट दे दिया गया, तो वो जो स्टैट्यूटरी रूल्स है उसका अपोजिट है, तो वहां पर रूल्स को रिलैक्स नहीं किया जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली आपका जो कंफर्मेशन है उसको कैंसिल किया जाएगा। इफ द ऑर्डर ऑफ कंफर्मेशन वाज मेड when there was no substantive vacancy, और कोई वैकेंसी नहीं है, and the confirming authority had no power, कि जो confirming authority है, जो आपको confirmation दिया था, उसके पास भी पावर नहीं है कि वो एक न्यू पोस्ट क्रिएट करे, तो इस केस में आपका ऑर्डर को कैंसिल कर दिया जाएगा। जो सेकेंड ऑप्शन है, ना कोई सब्सटैंटिव परमानेंट वैकेंसी है, ना जो अथॉरिटी आपको प्रमोट किया उसके पास पावर है कि कोई न्यू पोस्ट क्रिएट कर दे, तो ऑर्डर के हिसाब से, स्टैट्यूटरी रूल के हिसाब से आपका जो प्रमोशन गलत है तो आपका ऑर्डर को कैंसिल कर दिया जाएगा इस मैटर में। थर्ड वन है, कभी कभी मिस्टेक होता है। थर्ड वन क्या है, इफ द ऑर्डर ऑफ कंफर्मेशन वाज मेड इन एरर, क्या है, नेमिंग रॉन्ग पर्सन, माने एक पर्सन एक्चुअली पर्टिकुलर पर्सन को देना है, मगर हम नेम जो है अलग पर्सन को चला गया, मिस्टेक इन आइडेंटिटी में, तो ये तीनों केस में आपका ऑर्डर को कैंसिल कर दिया जाएगा। फर्स्ट है स्टैट्यूटरी रूल का कंट्ररी है, आपका अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गया। सेकंड में आपको तो प्रमोशन दे दिया गया, उसमें एरर है,
और यहां पर क्या है, कोई सब्सटैंटिव वैकेंसी नहीं है, कोई परमानेंट वैकेंसी नहीं है कि जो अथॉरिटी आपको प्रमोशन दिया उसके पास पावर नहीं है कि वो एक पोस्ट क्रिएट कर दे। और थर्ड वन है, आपको गलत पर्सन को चूज कर दिया गया जो ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको देख लीजिए। फंडामेंटल रूल 33 ऑफिशिएटिंग पे के ऊपर है। व्हेन ए गवर्नमेंट सर्वेंट ऑफिशिएट्स इन ए पोस्ट, तब आपका एक पे फिक्स होगा। ऑफिशिएटिंग में पे मींस आपको एक हायर पोस्ट दे दिया गया, जो हायर पोस्ट टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। ऑफिशिएटिंग पोस्ट मींस टेम्पररी, मगर आपको हायर पोस्ट दे दिया गया, वहां पर हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा। यू मस्ट कैरी हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू कैरी मोर बर्डन। ठीक है, तो उस केस में आपको आपका एक पे फिक्सेशन होगा। ठीक है, द पे व्हिच हैज बीन फिक्स्ड एट ए रेट पर्सनल टू अनदर गवर्नमेंट सर्वेंट, तो आपका एक पे फिक्सेशन होगा। तो जो पे फिक्स होगा उससे ज्यादा नहीं होगा। जैसे आपका पोस्ट से आप ऑफिशिएटिंग पोस्ट में चले गए, वहां पर एक पे फिक्स होगा, तो जो पे फिक्स होगा उससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। जो पे फिक्स हुआ उसके हिसाब से आपको आपका सैलरी रिलीज होगा। फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड है, इफ द रेट सो फिक्स्ड बी ए टाइम स्केल में ग्रांट हिम इनिशियल। अच्छा, एक टाइम स्केल में आपको मिला, जैसे टाइम स्केल में क्या है, आपका लेवल 9 को आपको दे दिया गया, ऑफिशिएटिंग पोस्ट लेवल 9 में है। तो ऑफिशिएटिंग पोस्ट जो लेवल 9 में होगा, आपका बेसिकली जो लोएस्ट स्टेज से शुरू होगा, सेल 1 से, सेल 1 से आपका बेसिक पे शुरू होगा, क्योंकि फास्ट है, आपका पे फिक्स कर दिया गया, जो फिक्स हुआ उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। सेकेंड ऑप्शन और में क्या किया कि यदि आपको एक टाइम स्केल पे में फिक्स किया गया, सपोज लेवल 9 में आपको फिक्स किया गया, उसका सेल 1 में जो पे है वही पे मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। ये लोअर स्टेज है, सेल 1 तो लेवल 9 का सेल 1 ये तो लोअर स्टेज है, वो लोअर स्टेज में जो पे है वही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको एक टाइम स्केल में फिक्स कर दिया गया। ठीक है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वही इफ द रेट्स ऑफ फिक्स्ड, if the rates of fixed be a time scale may grant him initial pay not exceeding the lowest stage of that time scale and future as usual future increment मिलेगा। ये ऑफिशिएटिंग पे ऊपर फंडामेंटल रूल 33 में दो चीज दे दिया गया, एक आपका पे फिक्स होगा, और एक यदि आपको टाइम स्केल में दे दिया गया कि लेवल 10 में आप गए और लेवल 10 में आपको दे दिया गया मीन्स आपका सेल 1 से स्टार्ट होगा, आपका पे जो लोएस्ट है, जो लोएस्ट मीन्स सेल 1 है, सपोज लेवल 10 में आप ऑफिशिएटिंग पोस्ट आपको दे दिया गया और उसका जो सेल 1 है उस जो पे है वही पे मिलेगा, यही तो लोएस्ट स्टेज है, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, तो उसके हिसाब से आपको इंक्रीमेंट जो रूल है इंक्रीमेंट मिलेगा। फंडामेंटल रूल 35 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर पे ड्यूरिंग ऑफिशिएटिंग ए पोस्ट, यहां पर पे फिक्सेशन के ऊपर कुछ एग्जांपल्स हम दे देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पर दे दिया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में फिक्स द पे ऑफ एन ऑफिशिएटिंग गवर्नमेंट सर्वेंट एट एन अमाउंट लेस देन दैट एडमिसिबल अंडर दीज रूल्स। देखिए, ये जो ऑफिशिएटिंग पोस्ट है वो टेम्पररी है, ये रेगुलर प्रमोशन जैसा नहीं है। ये क्या है, आपको एक हायर पोस्ट दे दिया गया ऑलरेडी, इट मींस अथॉरिटी हैज डिटेक्टेड दैट यू आर ए कैपेबल पर्सन, you are having efficiency, you are having potentiality, so that you can handle the higher post for temporary period of time, वही है ऑफिशिएटिंग पोस्ट। तो वहां पर आपका पे कैसे फिक्स होगा, यहां पर ये जो पे, फर्स्ट आप रूल को याद रखना है, यहां पर एक रेस्ट्रिक्शन है, रेस्ट्रिक्शन ऑफ ऑफिशिएटिंग पे। इसमें क्या किया गया ना, जो आपका जो प्रीवियस पोस्ट था उसमें पे लेवल को 12.5% हाइक कर दिया जाएगा, और अमाउंट इससे ज्यादा नहीं होगा, जो अमाउंट में जो हाइक होगा पर मंथ इससे ज्यादा नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी आपका एक पोस्ट था, ठीक है, आप एक पोस्ट हेल्ड किया है, अभी आप एक ऑफिशिएटिंग हायर पोस्ट में जाएंगे, तो वो ऑफिशिएटिंग पोस्ट में आपका पे कैसे फिक्स होगा? तो ऑफिशिएटिंग पोस्ट का जो पे फिक्स होगा, जो रेस्ट्रिक्शन है वो ये बोल दिया कि जो पोस्ट आपके पास अभी है प्रायर टू द ऑफिशिएटिंग पोस्ट, उसमें आपका जो बेसिक पे है उसमें 12.5%, उससे ज्यादा नहीं होगा, और अमाउंट में 6,700 पर मंथ, इतना ही हाइक हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होगा। उससे ज्यादा होगा तो उसको सब्सटेंशियल इंक्रीज हम बोलेंगे। ठीक है, हैव यू क्लियर अंडरस्टूड और नॉट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपका ऑफिशिएटिंग पोस्ट में आपका जो पे फिक्स होगा वो एक्चुअली जो प्रीवियस पोस्ट है, जो प्रीवियस, देखिए यहां पर मैं लिख दिया, जो प्रीवियस
बेसिक पे है उसमें 12.5% हाइक कर दो, और अमाउंट के हिसाब से 6,700, इससे ज्यादा नहीं होगा जो ऑफिशिएटिंग पोस्ट का पे फिक्स होगा। और यदि उसको क्रॉस करता है, रूल के इससे क्रॉस करता है, उसको हम सब्सटेंशियल इंक्रीज बोलेंगे। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल में दे दिया। देखिए यहां पर क्या है, जो रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई नहीं होगा। अच्छा थोड़ा एग्जाम्पल देख लीजिए, यहां पर क्या है, आपका जो पोस्ट था सेल 6 ऑफ लेवल 11 था आपका प्रीवियस पोस्ट में, बिफोर एक्चुअली प्रायर टू द ऑफिशिएटिंग पोस्ट, ₹78,500 आपका बेसिक पे था, सेल 6 ऑफ लेवल 11 में थे। यहां पर दे दिया बिफोर इज अपॉइंटमेंट टू ऑफिशिएट इन लेवल 12। अभी आप जो ऑफिशिएटिंग पोस्ट को जा रहे हो वो लेवल 12 है, ठीक है। और ऑटोमेटिकली लेवल 12 में जा रहे हो तो रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ग्रेटर इंपोर्टेंस रहेगा, क्योंकि आप हायर लेवल में जा रहे हो। ऑफिशिएटिंग पोस्ट मींस हायर पोस्ट है, ठीक है। ऑफिशिएटिंग पोस्ट क्या है, परमानेंट नहीं है, वो टेम्पररी पीरियड के लिए आपका कैपेबिलिटी को देखकर हायर पोस्ट में आपको दे दिया गया। मगर आपका जो लेवल अभी आपका जो पोस्ट है प्रायर टू द ऑफिशिएटिंग पोस्ट, आप लेवल 11 में हो सेल 6 में, जो बेसिक पे है 78,500। मगर अभी आपको जो ऑफिशिएटिंग पे लेवल है वही ये लेवल 12, ठीक है। तो अच्छा, जब आप ऑफिशिएटिंग अपॉइंटमेंट होता है, आपको जो सेल 6 ऑफ लेवल 11 था इसमें एक इंक्रीमेंट मिलेगा। आप चले गए सेल 7 इन लेवल 11, कितना हो गया 80,900। सेम जो पे लेवल आपका था लेवल 11 में थे सेल 6 में, उसी में एक इंक्रीमेंट मिलेगा। उसमें एक इंक्रीमेंट देखिए, उसमें एक इंक्रीमेंट मिला तो सेल 7 को आ गए, ये हो गया 80,900। देन ये एक्चुअली हम अभी लेवल 12 में देखेंगे कि ये है कि नहीं, and therefore is to be placed at a cell equal to the figure so arrived। यही फिगर है, ये है लेवल। आप याद रखिए जो पे लेवल में थे उसमें आपको एक इंक्रीमेंट मिलेगा। लेवल 6 पे देखिए, यहां पर लेवल 11 6 में थे, अभी सेल 7 को आ गए, और ये अभी आप लेवल 12 को आपका प्रमोशन हुआ। तो एक्चुअली वो यहां पे देख लीजिए, यहां पे देख लीजिए, तो यहां पे सेल 6 में थे, आपको एक इंक्रीमेंट मिला। आपका लेवल 11 था, अभी आप लेवल 12 को, जो ऑफिशिएटिंग पोस्ट लेवल 12 में है, तो इसमें एक इंक्रीमेंट मिला। इंक्रीमेंट मिलने के बाद ये आ गया, तो ये लेवल पे लेवल 12 में है कि नहीं हम देखेंगे, नहीं है तो उससे ज्यादा हम देखेंगे। मगर ये जो ₹80,900 वो एक सेल नहीं है लेवल 12 में, ठीक है। सिंस नो सच सेल इक्वल टू इज अवेलेबल, लेवल 12 में ये सेल नहीं है, तो ये सेल नहीं है तो आपको एक अपर सेल दे दिया गया जो लेवल 12 में 81,200 फिक्स हुआ, ठीक है। तो जिस पे लेवल में थे तो उसी में एक इंक्रीमेंट मिलेगा, और वो अमाउंट हम देखेंगे अभी जो लेवल 12 में आपका ऑफिशिएटिंग पोस्ट में प्रमोशन हुआ उसमें देखेंगे वो है कि नहीं, ये नहीं है तो उससे ज्यादा अमाउंट देखेंगे। तो ये हो गया। अच्छा, अभी आपको कितना डिफरेंस आ गया बेसिक पे में, ये प्रीवियस पोस्ट में था 78,500, अभी ऑफिशिएटिंग पोस्ट में कितना फिक्स हुआ 81,200। अच्छा, अमाउंट कितना बढ़ा 2,700। मगर आप देख लीजिए 12.5% ऑफ प्रीवियस बेसिक पे 78,500, इससे तो ये कम है, क्योंकि आपका जो पे हाइक हुआ अभी बेसिक पे में 2,700 हाइक हुआ, मगर इट इज लेस देन व्हिच इज लेस देन 12.5% ऑफ द बेसिक पे। जो प्रीवियस पोस्ट का बेसिक पे है उसका 12.5% से कम है, और एक अमाउंट भी था, आइदर आपका जो प्रीवियस पोस्ट था उसका 12.5% निकाल दीजिए और अमाउंट लीजिए 6,700। तो ये जो अमाउंट अभी हाइक हुआ ये तो सबसे कम है, तो इसमें रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई नहीं हुआ, ये देयर इज नो सब्सटेंशियल इंक्रीज, इसमें तो सब्सटेंशियल इंक्रीज नहीं होगा क्योंकि बैंड में नहीं जा रहा है। तो आइदर प्रीवियस पोस्ट का जो बेसिक पे में आप 12.5% हाइक कर दीजिए और अमाउंट ये ले लीजिए 6,700, मगर ये जो आपका पे हाइक हो रहा है 2,700, तो इसमें तो सब्सटेंशियल इंक्रीज अप्लाई नहीं होगा, तो एज यूजुअल आपका वही पे फिक्सेशन होकर इतना रहेगा। मगर और एक एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल 2 में यहां पर सब्सटेंशियल इंक्रीज होगा। जैसे ना आपका जो बिफोर ऑफिशिएटिंग लेवल आपका ये पे था, बेसिक पे था 1,75,000, सेल 13 ऑफ लेवल 13, अभी आपको लेवल 14 में ऑफिशिएटिंग पोस्ट मिला, ठीक है। तो जब लेवल 14 को आओगे तब क्या किया जाएगा ना, आप लेवल 13 में एक इंक्रीमेंट मिलेगा, ये हो गया सेल 14 इन लेवल 13 इंक्रीमेंट मिला
मैं आरओ दे दिया, इसमें एक इंक्रीमेंट मिलेगा लेवल 13 में। इंक्रीमेंट मिलने के बाद ये अमाउंट हो गया 1,80,800। अच्छा, अभी हम देखेंगे ये जो है अमाउंट क्या वो लेवल 14 का सेल में है? ओके, एंड देयरफॉर ही इज टू बी प्लेस्ड एट ए सेल इक्वल टू द फिगर सो अराइव्ड इन द लेवल 14। कि मगर ये अमाउंट लेवल 14 में नहीं है, यहां पर क्लियरली मेंशन है। ऐसा जो 1,80,800 वो कोई भी सेल में नहीं है लेवल 14 में। तो अभी जो फिक्स होगा लेवल, इससे ज्यादा अमाउंट हम देखेंगे लेवल 14 में फिक्स होगा। अच्छा, इससे ज्यादा अमाउंट होने से क्या हो गया? 1,82,700 हो गया, वो लेवल सेल 9 ऑफ लेवल 14। अच्छा, अभी हम प्रीवियस पे के साथ डिफरेंस देखेंगे, ये तो ज्यादा हो गया 7,200 हो गया। और मैं क्या बोला था कि आप इसको तो हमने अभी ये तो 12.5% ऑफ प्रीवियस बेसिक पे कितना 1,75,500, ठीक है कि नहीं? ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। और अमाउंट कितना मैक्सिमम होगा 6,700। तो ये अमाउंट से तो ज्यादा नहीं होगा। 12.5% ऑफ 1,75,500 ये अमाउंट से ज्यादा हो रहा है कि नहीं? बहुत हो रहा है, मोर देन 20,000 हो रहा है। मगर ये बोल रहा है आइदर ये और ये इसी अमाउंट से ज्यादा नहीं होगा, मगर इसी अमाउंट से भी ज्यादा हो गया 7,200, और तो कोई रास्ता नहीं है। तो इसमें ये बियॉन्ड चला गया, मीन सब्सटेंशियल इंक्रीज होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर वो बोल रहा है कि जो रेस्ट्रिक्शन है जैसे प्रीवियस बेसिक पे है वो उसका 12.5% हाइक कर दीजिए, और अमाउंट जो होगा 6,700, उससे ज्यादा बियॉन्ड नहीं जाएगा। बियॉन्ड जाएगा तो उसको हम सब्सटेंशियल इंक्रीज बोलेंगे, और यहां पर बियॉन्ड चला गया तो 7,200 जो 6,700 से ज्यादा है, ये लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए। और अदरवाइज आप देखिए 12.5% ऑफ 1,75,500 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, मगर लिमिट ये अमाउंट को क्रॉस नहीं करना चाहिए, मगर यहां पर क्रॉस होकर 7,200 हो गया, तो ये सब्सटेंशियली इंक्रीज होगा। तो ऐसे आपका ऑफिशिएटिंग पोस्ट में पे फिक्सेशन होता है, ठीक है। ऑफिशिएटिंग FR36 जो ऑफिशिएटिंग अरेंजमेंट क्या है, मैं आपको एक एक्टिंग प्रमोशन से, सपोज कोई जो रेगुलर पोस्ट में है उसको ट्रेनिंग मिला, सपोज ट्रेनिंग, ठीक है, ट्रेनिंग 6 मंथ्स मिला, तो ये जो ट्रेनिंग मिला तो उस जगह में एक एक्टिंग प्रमोशन दे दिया जाएगा, क्योंकि अभी वो एम्प्लॉय 6 मंथ्स के लिए ट्रेनिंग में रहेगा, तो यहां पर एक एक्टिंग प्रमोशन दे दिया जाएगा उसका प्लेस में, ठीक है। मगर ये जो ट्रेनिंग में चला गया 6 मंथ्स, ये ड्यूटी पीरियड में काउंट होगा, मगर उसके जगह और एक एम्प्लॉय को एक्टिंग प्रमोशन दे दिया गया उसके जगह में टेम्पररी पीरियड के लिए, मगर ये जो ट्रेनिंग लिया इसका ड्यूटी में काउंट होगा ना, ट्रेनिंग ले रहा है ड्यूटी में काउंट होगा। वो दिया है रूल 9 सबसेक्शन 6B, इसको याद रखिए, इसमें क्लियरली मेंशन है, यदि कोई एम्प्लॉय ट्रेनिंग में जा रहा है और उसका प्लेस में एक एक्टिंग प्रमोशन दे दिया जाता है, और जो एम्प्लॉय ट्रेनिंग में गया वो ड्यूटी पीरियड में काउंट होगा, और वो रूल 9 सबसेक्शन 6 का बीट बी में क्लियरली मेंशन है, ठीक है। पर्सनल पे के ऊपर है FR37 पर्सनल पे। मैं बताया था एक MCQ क्वेश्चन में कि पर्सनल पे कब मिलता है, जब पे में कुछ अनोमली होता है, पे में अनोमली होता है, उसको कवर अप करने के लिए सपोज एक पर्सनल पे यहां पर इतना है, इसको दे दिया गया, आपका बेसिक पे के साथ इतना ऐड कर दिया गया, क्योंकि पे में अनोमली है, रॉन्ग है, उसको कवर अप करने के लिए। मगर अभी क्या किया है, तो जो पर्सनल पे का अमाउंट, एडिशनल अमाउंट आपको मिल रहा है, इसको सपोज हाइक कर दिया गया, आपका बेसिक पे इतना अमाउंट हाइक कर दिया गया, आपका बेसिक पे को हाइक कर दिया गया बाय ₹2,500 मेरा एग्जांपल में, तो आपको पर्सनल पे आपका बंद हो जाएगा, ठीक है नहीं? तो वही FR37 बोला है, क्लियर। चलो नेक्स्ट वन FR39, एक टेम्पररी पोस्ट को क्रिएट किया गया, और टेम्पररी पोस्ट में इज क्रिएटेड व्हिच में हैव टू बी फिल्ड बाय ए पर्सन नॉट ऑलरेडी इन गवर्नमेंट सर्विस। जो टेम्पररी पोस्ट क्रिएट हुआ उसमें जो अपॉइंटमेंट दिया गया जो आदमी को, वो गवर्नमेंट सर्विस में नहीं था, आप समझ रहे कि नहीं? जो टेम्पररी पोस्ट को क्रिएट किया गया और उसमें जो एक पर्सन को अपॉइंटमेंट दिया गया वो टेम्पररी पोस्ट में, वो गवर्नमेंट सर्विस में नहीं था, तो उसका पे कैसे फिक्स होगा? हम देखेंगे कि एक मिनिमम पे उसके लिए फिक्स किया जाएगा,
जो एक्चुअली जो वर्क को हम देखेंगे कि ये वर्क ही करेगा टेम्पररी पोस्ट में। इन दिस टेम्पररी पोस्ट द पर्सन एक्चुअली कैरी दिस टाइप ऑफ वर्क। तो एक मिनिमम पे उसके लिए फिक्स किया जाएगा, ठीक है कि नहीं, समझ में आया। मगर यहां पर दिया है कि गवर्नमेंट सर्वेंट सॉरी जिस आदमी को टेम्पररी पोस्ट में फिल किया गया वो गवर्नमेंट सर्विस में नहीं है, तो एक मिनिमम सैलरी उसके लिए फिक्स होगा, उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी को देखकर एक मिनिमम सैलरी फिक्स होगा, ठीक है। ये FR 39 बोल रहा है। मगर यहां पर ये लास्ट रूल मेरा जो आज का वीडियो का है उसमें क्या है, टेम्पररी पोस्ट क्रिएट हुआ मगर वहां पर एक गवर्नमेंट सर्वेंट को ही ऑब्जर्व किया गया। ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्वेंट एक पोस्ट में है, उसको वो टेम्पररी पोस्ट में ऑब्जर्व कर दिया गया, ठीक है कि नहीं। यहां पर दिया है which already which will probably be filled by a person who is already a government servant। तो पे उसका पे कैसे फिक्स होगा, तो दो पॉइंट्स हम लेंगे, उसका एक कैरेक्टर देखेंगे और उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी देखेंगे, क्योंकि वो एक पोस्ट में था और अभी उसको टेम्पररी पोस्ट में ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो उसका कैरेक्टर अच्छा है, हिज कैरेक्टर इज गुड वन एंड ऑल्सो इट मीन्स ही हैज मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू हैंडल द वर्क। और नेक्स्ट है उसका एग्जिस्टिंग पे को हम देखेंगे, उसका पे क्या था, जो गवर्नमेंट जो पोस्ट में था परमानेंट पोस्ट में था उसका पे लेवल क्या था, और अभी इसको टेम्पररी पोस्ट में ऑब्जर्व किया गया और उसका हम वर्क बर्डन देखेंगे, वर्क रेस्पॉन्सिबिलिटी देखेंगे, वो ज्यादा है तो उसके हिसाब से उसका पे फिक्स होगा। तो ये फंडामेंटल रूल 26 to 40 था और 10 MCQs था, ठीक है। तो इसको अच्छे से प्लीज देख लीजिए। तो मैं ट्राई किया, अच्छा बढ़िया MCQs दे दिया जो आज का पैटर्न है। So my friends, please subscribe my channel, share my channel and like my channel so that you can get notification for my upcoming videos। आज इतना ही है, थैंक यू और नमस्कार to all of you।